So 10 finals in the afternoon session on day 3 of the track and field, the 18th National Youth Championships. We're coming to you live from the MG Stadium in Udupi, Karnataka. The first of the afternoon events, the high jump with a total of 11 in the boys under 18. And I don't need to emphasize that the event over 3 days is for boys and girls under 18. Akash, Uttar Pradesh, the first of the high jumpers. The others to follow: Sahil Yadav, Haryana; Vishnuvardhan of Tamil Nadu; Vansh Chaudhary, Uttarakhand; Rakesh Chaudhary, Rajasthan; Prashant G from Tamil Nadu; Akash Kumar Verma, Delhi; Adesh Ramesh Wandale from Maharashtra; Sarthak Shivaji Nimbalkar, Maharashtra; Ram Singh, Haryana; and the 11th of them, Sahil Jot Singh of Punjab. The bar at 1.75 meters to start off with, and then they'll gradually go up by 5 centimeters up to 1.90. From there on by 3 centimeters to 2.02, and then subsequently to 2 centimeters. The qualifying mark for the Asian Youth 1.97, the national record, Tejaswini Shankar, Coimbatore 22.26 on the 10th of November 2016. Now Tejaswini Shankar is the national champion. India International trains at the University of Kansas in the United States. 1.75, 3 attempts at each height, else you call it a day. The meet record, Rajesh Kaliramana, Bangalore 2005. Welcome for the afternoon session with me, Virender Tejaswin Shankar, 2.26, the national record. Obviously, he's gone on to win higher laurels for India, does extremely well in the collegiate and the NAA championships in the United States. सही कहा आपने। तेजस्वी शंकर 2.26 मीटर का जो उनका ये राष्ट्रीय कीर्तिमान है, और आखिरी दिन के दोपहर पश्चात के ये इवेंट हम यहाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं। और पहला इवेंट जो फिलहाल चल रहा है, हाई जंप बॉयज़ का फाइनल। कुल 11 प्रतिभागी हैं इस इवेंट में, 11 कॉम्पिटिटर्स। We'll just give you the finals that are slated for the afternoon. What you're watching is the final of the high jump for boys or men under 18. The javelin throw, the 700 grams, the final men's under 18. That's event number 32. The triple jump for men under 18. The 200 meters respectively, the men and the women, the finals. You then have the 2000 meter steeplechase, which is event number 36. The 2000 meter steeplechase for women, event 37. The 800 meters, which is the final event in the heptathlon, the 7th event. And the medley relay final, women under 18. And the medley relay final, event number 40 for the men. The high jump, as you all know, it doesn't matter what style, although these high jumpers adopt the Fosbury flop. It's not the style but the height that counts, and consequently the vertical speed at the takeoff is the deciding factor. टेक ऑफ यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, और तभी आप एक अच्छी ऊंचाई को यहाँ पर पार कर पाएंगे। ये थे साहिल जोत सिंह पंजाब के। हाइट 1.75 मीटर है फिलहाल बार की। And we also know, Virender, that some of the elite high jumpers do pass of a height. बिल्कुल सही कहा है आपने। और कई जो जंपर्स होते हैं जिन्हें पता है इतनी हाइट फिलहाल क्रॉस कर रहे हैं, तो वो स्टार्टिंग हाइट जो होती है इस तरह कॉम्पिटिशन्स में उसको पास कर देते हैं। क्योंकि वो अननेसेसरी अपनी एनर्जी को वहाँ पर वेस्ट नहीं करना चाहते हैं।
they wait for the height on which they actually want to jump. It is a gamble, but remember, the elite high jumpers, whether it is at the under 18 or the senior pros, they have done such heights in their dream, in their sleep. They do these heights day in and day out. But खुदा ना करे कब मैं तो शायद अंडर 18 लेवल पे वो तो चांस नहीं लूँगा, बिकॉज ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको प्रैक्टिस करने की। वो हाइट आप प्रैक्टिस बाहर भले करें, लेकिन कंपटीशन में आपको जो मिलती है अपॉर्चुनिटी वो एक कायम की होती है। ये निर्भर करता है उन एथलीट्स के कोचेस के ऊपर भी कि वो अपने खिलाड़ी को क्या गाइड करते हैं। और बिल्कुल आपका ये कहना सही है कि उनके लिए ये एक प्रैक्टिस होती है, परंतु कंपटीशन इज़ कंपटीशन, और कंपटीशन के लिए उनको अपनी एनर्जी, अपनी स्टेमिना जो है उसको बचा कर रखना है ताकि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। और इसीलिए इस तरह की जो टैक्टिक्स हैं उनको अपनाया जाता है। ऑल्सो द रीज़न इज़ दैट द एलीट जंपर्स want to put mental pressure on their opponents. बिल्कुल, ये तो बहुत ही ज़रूरी बात जो आपने यहाँ पर दर्शकों तक पहुँचाई है कि यदि वे शुरू के हाइट्स को पार करते हैं तो इससे जो है मानसिक रूप से एक दबाव बाकी जो प्रतियोगी हैं उनके ऊपर पड़ता है, और इसका लाभ भी जो है उन कॉम्पिटिटर्स को जिनको मालूम है कि हमने मिनिमम इतना यहाँ से स्टार्ट करना है। फिलहाल 694 विष्णुवर्धन जो कि तमिलनाडु के हैं, बिल्कुल साफ क्लियर किया है उन्होंने। Barinder, the other factor that I'd like to bring to your attention is that, we spoke about the takeoff, but a lot of coaches I've seen emphasize on the bar clearance. Now, the bar clearance, according to me, with a little bit of my experience of whatever high jumps I've seen and seen them at a fairly high level, is that is the least of the priorities. जी हाँ, लेकिन हमने रेगुलर हम स्टेडियम्स में जाते रहते हैं और वहाँ पर जो कोचेज़ इसकी ट्रेनिंग देते हैं वो बिना बार के अकेली टेक ऑफ की, उनका जो पर्टिकुलर लेग है जिससे उन्होंने टेक ऑफ करना है उससे उन मैट्रेसेस के ऊपर टेक ऑफ की वो प्रैक्टिस उन्हें करवाते हैं। सो इसका मतलब है टेक ऑफ और रन अप, टेक ऑफ और रन अप। बिल्कुल, टेक ऑफ और रन अप जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें अहमियत रखता है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें हर रनर का, जिस तरह से हम लॉन्ग जंप पे देखते हैं, लॉन्ग जंप पे मेजरिंग टेप से उनको मालूम है कि मेरा इतना मीटर का रनअप है, वैसे ही इसमें उन्हें अपने स्टेप्स का पता रहता है, स्टेप की कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर। और प्लस बार से उन्हें कितनी दूर से टेक ऑफ लेना है वहाँ पर भी ये मार्कर अपना जंपर्स जो हैं उसको यूज़ करते हैं। फिलहाल 644 आदेश रमेश वंडाले महाराष्ट्र के। इस इवेंट में फिर हमारी नज़र जो है वो नेशनल रिकॉर्ड और मीट रिकॉर्ड के जो परफॉर्मेंसेस हैं वहाँ पर जाती है, और साथ ही जाती है जो एशियन यूथ के क्वालिफाइंग मार्क की इन्होंने रखी गई है। 1.97 मीटर का क्वालिफाइंग मार्क है, और नेशनल रिकॉर्ड तेजस्विनी का जो है 2.26 मीटर का है, और मीट रिकॉर्ड राजेश कालीरमना का 2.08 मीटर्स का है। Success, of course, in the high jump depends upon largely, as we have been discussing, and we'll talk about the high jump as we have the introduction of the boys under 18, the javelin slated to start at 2:45. Arjun 5:27, Delhi, Ashish Kumar Rajasthan, Vikas Rajasthan, Rahul Bali Dotre of Maharashtra, Himanshu Gupta from Bihar, Gaurav Patel from Uttar Pradesh, Aditya Pathak from Madhya Pradesh. उसके पश्चात है दीपांशु शर्मा उत्तर प्रदेश के, दीपांशु रविंदर भी हैं यहाँ पर हरियाणा के, और दीपांशु शर्मा उत्तर प्रदेश के, और उसके बाद कनिष्का टी तमिलनाडु, और अजय कुमार यादव उत्तर प्रदेश। और
जैवलिन में यदि हम यहाँ पर देखें क्वालिफाइंग मार्क 67.67 मीटर का है, और वहीं नेशनल रिकॉर्ड की तरफ यदि हम जाएं तो 81.75 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड है रोहित यादव के नाम से, और मीट रिकॉर्ड भी रोहित यादव के नाम से दर्ज है, लेकिन परफॉर्मेंस यहाँ है 77.41 मीटर, 77.41 नेशनल मीट रिकॉर्ड, और क्वालिफाइंग मार्क एशियन चैंपियनशिप के लिए 67.67 मीटर। So 12 starters or 12 javelin throwers. Yes, that's an interesting point. National record 81.75. The meet record 77.41. Now, when you look at the senior national record and what Neeraj Chopra threw at the Olympic Games, 81.75 is a fairly good throw. In fact, I would say an excellent throw. बिल्कुल एक अच्छा थ्रो है 81.75 मीटर का ये, जो कि एक रिकॉर्ड स्थापित हुआ वर्ष 2019 में। रोहित यादव ने इसे स्थापित किया सोनीपत में। फिलहाल अर्जुन, जो कि दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस 18th नेशनल यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में, पहला राउंड सही जगह से यदि इम्प्लीमेंट को आपने ग्रिप किया हुआ है और आपके रनवे के साथ साथ स्प्रिंट के साथ साथ यदि आप अपने बॉडी का बैलेंस मेंटेन करेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। और यहाँ पर बॉडी का संतुलन इनका थोड़ा सा बिगड़ा और सीधे जो आर्क था जेवलिन का उसको उन्होंने टच किया और रेड फ्लैग। Hence, the grip, the run up, and then the final action, all these play such a crucial role, and that's why they say that the deciding factor in the javelin is the speed of release. If you have the right grip, you have a good run up, smooth run up, and one of the reasons, Varinder, I keep on saying that this was Ashish Kumar of Rajasthan. One of the things that I mentioned about the javelin run up is like an aircraft on the runway. These javelin throwers are on the runway there. You pick up your speed. The run up becomes so important. And of course, to obtain the best possible release speed that you're talking about, it depends on the speed accumulated in the run up at the end of the day. बिल्कुल सही कहना है आपका। और यहाँ देखिए एक अच्छा प्रयास 672 विकास, जो कि राजस्थान के हैं, वाइट फ्लैग अप, राइट थ्रो, और इंतजार रहेगा हमारे पास परफॉर्मेंस का। पहला राउंड और 12 प्रतिभागी हैं इस कंपटीशन में। कासिम, और 56.10 मीटर का थ्रो रहा है विकास का पहले राउंड में। देखिए, आई एम गोइंग बैक अगेन टू द नेशनल रिकॉर्ड ऑफ 81.75 इन द जूनियर्स, जबकि हम बात कर रहे हैं अंडर 18 की, और नीरज चोपड़ा का पर्सनल बेस्ट 89.94 है जो 2022 में स्थापित किया था। तो 9 मीटर्स काफ़ी होता है, बहुत होता लेकिन है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि अगर 81.75 कर सकता है तो 1, 2, 3 साल के बाद जो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के साथ में वहाँ पहुँचने में कोई मुश्किल बात नहीं है। जी हाँ, ट्रेनिंग का जो एक पार्ट है, उस ट्रेनिंग के पार्ट के साथ साथ उस एथलीट का डेडिकेशन भी साथ में चाहिए, सेक्रिफिकेशन भी चाहिए, सेक्रीफाइस भी करे। वो बहुत सारी चीज़ों का त्याग एक अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करना पड़ता है। टाइम पर ट्रेनिंग, टाइम पर रेस्ट और प्रॉपर डाइट, और साथ ही साथ ट्रेनिंग में जो एक वेट ट्रेनिंग होती है
उस वेट ट्रेनिंग का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, विशेषकर थ्रोइंग इवेंट्स पे। मुझे अभी भी याद है कि जब नीरज चोपड़ा अपने गांव में था तो उसको वहाँ के जो बच्चे थे, उसके जो दोस्त थे, वो उसको चिढ़ाते थे। दे यूज्ड टू टीज हिम बिकॉज ही वाज क्वाइट अ ओबेस गाय, यानी मोटा था। और उसके फादर ने उसे एक जिम्नाजियम, मधुशाला में एक जिम्नाजियम में उसकी भर्ती की थी। और वहाँ से फिर उसने पानीपत में शिवाजी स्टेडियम जैवलिन थ्रोअर्स को देख के वो खुद पार्टिसिपेट करने लगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि शुरुआत आपकी ज़िंदगी की खास ना हो, बच्चे आपको हंस रहे थे और वही बच्चे उसको कहते होंगे, भैया आप तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। ऑटोग्राफ मांगने जाते होंगे ऑटोग्राफ, उनके पास। बिल्कुल। बिल्कुल। वक्त की बात है, कहाँ उस समय पर नीरज ने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि वे इस ऊंचाई तक पहुंचेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने इस प्रतिभा का परचम लहराएगा। So here is the very efficient friend of ours, Neeraj, who passes on a paper and he says, Mobasina Mohammed, the under 18 heptathlon, 4138 points. Mohar Mukherjee, 3971 points. This is going to be Varinder, a cracker of a final event coming up during the day. बिल्कुल। मुबासिना जो कि दूसरे नंबर पर चल रही थी, उन्होंने मोहर मुखर्जी को पछाड़ते हुए जो है अब लीड प्राप्त कर ली है 4138 पॉइंट्स की। लेकिन यदि हम पॉइंट्स का अंतर देखें तो ज़्यादा अंतर नहीं है और अभी एक इवेंट और बाकी है। We also have the introduction for the triple jump. 7 of the jumpers. Now, Varinder, what can be the reason? अगर हाई जंप में 11 है, जैवलिन में 12 है, तो ट्रिपल जंप में सिर्फ 7 है। Back to the javelin. We'll talk about this. बिल्कुल, जैवलिन की तरफ फिर एक बार हम ले चलते हैं। फिलहाल 584 दीपांशु रविंदर उत्तर प्रदेश के। आगे भविष्य में जाके इनमें से कोई ना कोई तो नीरज चोपड़ा के रूप में हमें देखने को मिलना चाहिए। आप देखो 40 मीटर जब वो फेंकता था नीरज चोपड़ा, तो कोच काफ़ी उसे प्रभावित हो गए। छोटे गांव से ही वॉज टेकन टू पानीपत एंड फ्रॉम पानीपत डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड दैट इज द रीज़न एज टू वाई 3 of the meets that I have been a part of over the last 4 odd months, the district meet, the junior meet, the youth meet, are so important from the point of view of these children, the boys and the girls. एक छोटे से कस्बे से निकलकर उन ऊंचाइयों तक पहुंचना वाकई तारीफ काबिल है। 53.83 का ये थ्रो रहा है दीपांशु शर्मा का, हरियाणा के। और इसके पश्चात हैं अजय कुमार यादव, उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रेड फ्लैग अप। और पहला ये जो उनका मौका था उनके पास, इसे गंवा चुके हैं। When you look at these javelin throwers, to accumulate the speed, the javelin thrower, you will watch him actually perform a straight run up identical to the long jump or the triple jump before reaching the throwing position. A nice t-shirt there, like a tiger stripe. बिल्कुल टाइगर स्ट्राइप यहाँ नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनको यहाँ पर अपने आप को टाइगर स्थापित करना होगा। 527 अर्जुन दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हिंदुस्तान की हृदय स्थली है दिल्ली, और दिल्ली हमारे देश की राजधानी। पहला जो उनका प्रयास था वो विफल रहे थे, फाउल हुआ था। ये सेकंड राउंड में।
और 62.28 मीटर्स के साथ उन्होंने शुरुआत करी है अपने परफॉर्मेंस की। आशीष कुमार, राजस्थान। 49.84 मीटर का उनका पहला थ्रो था, काफ़ी कमज़ोर थ्रो नज़र आ रहा है। जैवलिन का ये फाइनल इवेंट 666 आशीष कुमार 50.45 का ये दूसरा थ्रो रहा है। उनका पहला था 49.84 और ये दूसरा रहा है 50.45 मीटर्स। In approximately 10 minutes from now, we will also have the finals of the girls 200 meters. That will of course start at the far end of the stadium from where we are sitting. We are near the finishing line. 45.57, not good enough to be anywhere near the podium. You need to be near the podium. 70 plus should be the target. A good throwing position in the javelin is one that allows the javelin to accelerate. The word is allowed to accelerate so that the slower and more powerful muscles of the leg and the trunk used, and they are used before the relatively weaker but faster muscles of the shoulder and arm get into action. अवनीश चौधरी राजस्थान के थे, विप नंबर 673। रेड फ्लैग यहाँ पर इसी बात का संकेत कि उनका ये थ्रो वैलिड नहीं है। फिलहाल अभी तक यदि हम परफॉर्मेंस देखें, यहाँ पर जो दूसरा राउंड शुरू हो चुका है, 62.28 मीटर का अर्जुन का रहा है और 61.71 का रहा है राहुल बाली धोत्रे का। दिल्ली और महाराष्ट्र के हैं ये दोनों खिलाड़ी। बाकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो सारे 55, 56 और उसके नीचे नीचे के मेजरमेंट्स के यहाँ पर आ रहे हैं। 738 गौरव पटेल 60.49 मीटर का उनका पहला थ्रो रहा था और ये सेकंड अटेम्प्ट। अपनी तरफ से हर खिलाड़ी का प्रयास होता है कि वे अच्छा परफॉर्म करे, अच्छे डिस्टेंस कवर करे, लेकिन यहाँ फिर रेड फ्लैग देखने को मिल रहा है। आखिरी वक्त पर थ्रो रिलीज़ करते समय, इम्प्लीमेंट रिलीज़ करते समय अपने बॉडी का उन्होंने जो संतुलन था, बैलेंस था, उसे कायम नहीं कर पाए और आर्क पर उन्होंने टच कर दिया और इस तरह फाउल थ्रो। और अगले प्रतियोगी हैं आदित्य पाठक मध्य प्रदेश के। पहला अटेम्प्ट इनका बेकार गया था, असफल रहे थे। The javelin, right from the time you grip the javelin, is a continuous movement process, and that's the reason why we spoke about the various stages: the grip, the run up, the delivery and the reverse. Aditya Pathak, Madhya Pradesh. ग्रिप की बात यदि हम करते हैं यहाँ पर, तो केवल जेवलिन के लिए ही हम ग्रिप की बात नहीं करते। ग्रिप आपके डिस्कस में, जब आप डिस्क के उसमें परफॉर्म कर रहे होते हैं या शॉर्टपुट में परफॉर्म कर रहे होते हैं, सभी इन इवेंट्स में ग्रिप बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। 54.32 मीटर्स का रहा था पहला इनका प्रयास और देखना होगा दूसरा जो इनका अटेम्प्ट था
कितना परफॉर्म करते हैं। निगाहें स्कोरबोर्ड की तरफ। Yes. 52.94 मीटर्स कमी आई है। Here, Virender, the idea of the grip is to impart the rotation of the flight. 52.92, and of course to stabilize it. That's why the grip here in the javelin becomes important, to impart the rotation to the flight and then to stabilize it. सही कहा है आपने। ग्रिप जो है आपका, ये जो इम्प्लीमेंट है उसके सेंटर से आपको जो है एक बैलेंस करते हुए और रनवे पर सीधे अपने हेड के पास रखते हुए एक अच्छे मोशन के साथ, स्प्रिंट के साथ उसे प्रॉपर रिलीज करना है। दीपांशु शर्मा, जिनका पहला प्रयास था 53.83 मीटर्स का, और ये दूसरा अटेम्प्ट, वाइट फ्लैग अप, राइट थ्रो। .78 मीटर। अच्छा इन्होंने प्रोग्रेस करी है अपने सेकंड राउंड में। If you take a closer look at the gripping of the javelin, we'll perhaps see it a little later when we have the javelin thrower gripping it. Red flag. The shaft between the thumb and the index finger. Remember, the shaft between the thumb and the index finger. Now watch it. Watch one of the three variables. The second is the thumb and the second finger, and the third, of course, is the index and the second finger. 53 up to 58 or close to 59. 62.28 for Arjun. तीसरे राउंड की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है अर्जुन के साथ, और पहला थ्रो इनका फाउल रहा था। दूसरे में 62.28 मीटर की दूरी तय करी थी, और ये तीसरा अटेम्प्ट दिल्ली के अर्जुन। देखना होगा इनके द्वारा छोड़े गए ये जेवलिन रूपी तीर जो है किस निशाने पर बैठते हैं। 64.70 मीटर अच्छा डिस्टेंस इन्होंने यहाँ पर गेन किया है अपने सेकंड थ्रो में। 62.28 और 64.70। यदि ये ग्राफ इनका इसी तरह चलता रहा तो निश्चित रूप से 6 राउंड पर पहुंचते पहुंचते एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आशीष कुमार 666 राजस्थान के 49.84, 50.45, और ये तीसरा राउंड .48 काफी निराशाजनक प्रदर्शन यहाँ पर है ये। So Virender, from the javelin we now shift our attention to the final of the girls 200 meters. Far end, Duti Chand holds the meet record. Duti Chand now in India International, last few years Olympian. Set in Bangalore, 24.49 in 2012. So 11 साल हो गए, ये रिकॉर्ड वैसे ही है द्युति चंद का। The national record Avantika Narale in Hong Kong, 24.20. And the introduction now, lane 1 on the right is Neeru Pathak of Delhi. 111. Nelson Shireen Aluwalia of Chandigarh in 2. Rezona Malik, wonderful girl, West Bengal in lane 3. Nancy, also the favorite, in lane 4. So Rezona, Nancy and Isha 3, 4, 5 should be the favorites. बिल्कुल कंपटीशन यहीं पर नजर आने वाला है, और लेन 4 पर है नैन्सी। फिलहाल स्क्रीन पर रेजोना मलिक 327 वेब नंबर के साथ, और उसके पश्चात लेन 4 में है नैन्सी
हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रही हैं। लेन 5 में ईशा राजेश यादव महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और लेन 6 में खुशी सदाना उमेश महाराष्ट्र। लेन 7 में है डोडला साई संगीता तेलंगाना से। और लेन 8 हेशिखा भी तमिलनाडु से। बिल्कुल सही आप कह रहे थे। लेन नंबर 3, 4, 5 इन 3 पर नजरें रहेंगी। रेजोना मलिक जहां एक तरफ से आप कह रहे हैं कि बहुत फेवरेट और एक अच्छी धाविका हैं, वहीं साथ ही साथ नैन्सी को और ईशा को भी यहां पर कमजोर नहीं समझना चाहिए। Shirin Aluwalia and Rezona Malik, as also I think Nancy and Isha have participated in both the 200 and the 400. बहुत कम देखने मिलता है कि 200 और 400, 100 और 200 तो करते हैं, जैसे दितु चंद 100-200 करती है। हिमा दास ने 200 और 400 और फिर शिफ्ट कर दिया। बट 200 और 400 शायद इस एज ग्रुप में करना ठीक है। उसके बाद फिर स्पेशलाइजेशन होगी आइदर 200 और 400। बट माइकल जॉनसन प्रूव्ड दैट winning the 200 and 400 is easy if you want to do it. बिल्कुल। यदि हम पहले जो पुराना समय रहा है, जब हिमा दास ने शुरुआत करी थी उस टाइम वो 400 मीटर की धाविका थी और बाद में जो है वो 200 मीटर पे स्किप हुई और ये शुरुआत 200 मीटर के फाइनल की। So in the inside there, Rezona Malik, watch her in lane number 3, strong in lane number 5, Isha Rajesh Yadav. This is where the cheese and the shock, the girl from Haryana, Nancy. Oh, look at Nancy, look at Rezona. And But in it is the Khushi Sadana Umesh from Maharashtra. surprise, Is the first place. surprise. And Rezona Malik is at the second place. I am surprised. Good start there for all 8 of them. Virendra, I'm sorry I've interrupted you, but as I keep on saying, surprise. We all said 3, 4, 5, 6. Khushi Sadanand Umesh of Maharashtra. And look at her coming up. The final burst there. Nancy good. Rezona good. But in the end, Khushi Sadanand Umesh, as you rightly said, came up with an outstanding performance, wasn't it? Really it is outstanding performance। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस समय जो सपोर्ट मिली होगी खुशी सदाना को, वो परफेक्ट स्टार्ट का उसे बेनिफिट मिला होगा। देखिए एक बार फिर रिप्ले में कर्व के पश्चात स्ट्रेट 100 पर आते हुए और फिनिश लाइन की ओर अग्रसर। लेन 6 से खुशी सदाना ने पहले फिनिश किया और लेन 3 से रेज़ोना मलिक दूसरे स्थान पर और नैन्सी लेन नंबर 4 से। देखिए फोटो फिनिश की ये इमेज, फोटो फिनिश कैमरा की। Yes, came up with a sizzler towards the end. Not many perhaps gave Khushi Sadanand Umesh to go there. All of them, I think, had a super start. And yeah, there you are, 24.58. So she's qualified. 24.61. Rezona 2 has qualified to qualification mark of 24.79. And Nancy also 24.74. So all 3 of them have achieved the mark of the qualifying, and that is 24.79. Here again you can see an image of a photo finish camera. What a close finish. और इसके बाद पुनः एक बार हम जेवलिन थ्रो की ओर, जहां पर तीसरा राउंड अभी चल रहा है। तीसरा राउंड यहां पर संपन्न हो चुका है। ये नहीं, तीसरा राउंड अभी बीच में वो
54.78 there for Dipanshu Sharma of Uttar Pradesh. So he's been hovering around the 54-meter mark. Ajay Kumar Yadav with 2 crosses against his name. We're looking at the grip once again. And the run-up now, the aim of course of the run-up is to reach the maximum controllable approach speed and to obtain an efficient throwing position. So there's plenty of action which is going on at the same time. The high jump on, the javelin on, and also the triple jump is on now. 7 of the jumpers. We're looking at Sahil Yadav of Haryana. Good old times, we would call it the hop, step and jump. और जिस जंपर का हॉप, स्टेप और जंप तीनों ही पावरफुल हैं, तो निश्चित रूप से वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और हमें याद है रंजीत महेश्वरी को हमने परफॉर्म करते हुए देखा है कई बार एरिना में, चैम्पियनशिप्स में। और उस व्यक्ति के अंदर जो एक जोश होता था अपने उस पर्टिकुलर जंप के लिए, वो वाकई तारीफ़ काबिल होता था। और फिलहाल ट्रिपल जंप का ये इवेंट फाइनल और क्वालिफाइंग मार्क यहाँ यदि हम देखें तो 14.26 मीटर का है। और नेशनल रिकॉर्ड चित्रवेल के नाम से है 15.84 मीटर्स का। और मीट रिकॉर्ड सोनू कुमार के नाम से है 15.50 मीटर्स के साथ। 7 प्रतिभागी, 7 कॉम्पिटिटर फिलहाल मैदान में। साहिल यादव 13.49 पहला जंप, दूसरा रहा है 13.58 मीटर का। जब हम ये कंपटीशन की बात कर रहे हैं जूनियर नेशनल्स या जूनियर यूथ नेशनल्स के बारे में, तो अगर आप देखेंगे तो हर एक जो ट्रिपल जंपर है, हम अब ट्रिपल जंप की फ़िलहाल बात करें तो एल्डोस पॉल, अब्दुल्ला अबूबकर जो आज इंडिया के 2 होनहार ट्रिपल जंपर्स है, और प्रवीण चित्रवेल जिसका यहाँ पर नेशनल रिकॉर्ड है 15.8 फॉर ब्यूनस आयरिस ब्राज़ील में उन्होंने सेट किया था। और हेनरी रिबेलो, अब हेनरी रिबेलो हम जाते हैं 1948 लंदन ओलंपिक्स में, तो 1948 ओलंपिक से अब हम आ रहे हैं, ये पहले 3 जो नाम हैं एल्डोस पॉल, अब्दुल्ला अबूबकर और प्रवीण चित्रवेल 2010-2015 के बाद के खिलाड़ी है। तो ट्रिपल जंप एक भारत में तब जब हॉप स्टेप एंड जंप के नाम से हम बोलते थे तभी भी पॉपुलर थी। और यदि हम नेशनल रिकॉर्ड देखें तो वर्ष 2018 में स्थापित किया गया है। फिलहाल एक बार फिर ट्रैक पर 200 मीटर। So the 200 meters with Shanmuga Srinivas, the meet record 21.87, the national record Amir Kumar Malik, one of India's fine 100 and 200. Lane 1 is Lav Rawat, lane 2 is Sheikh Azharuddin, 3 is Abhay Singh, 4 is Mohammad Bian, Shivam in 5, Mutanna in 6, Pavan Kumar Pangi of Andhra Pradesh in 7 and Lalit Bhatti in Delhi. लास्ट 200 मीटर जब विमेन की मैंने शायद सोचा भी नहीं था, हम चर्चा कर रहे थे लेन 3 और 4 की बात कर रहे थे, लेकिन लेन नंबर 6 जो थी, तो यहाँ पर आई विल नॉट वेंचर टू टेल यू
whether it's going to be 3, 4 and 5. But नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर जरूर कहूँगा एक बार फिर लेन 3 यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। भले मैं मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूँ, लेकिन अभय सिंह की जो बॉडी लैंग्वेज थी और हीट के अंदर जो उनका परफॉर्मेंस था, उस तरफ थोड़ा सा हमारा ध्यान जरूर रहना चाहिए। परंतु कंपटीशन फाइनल है और सेमीफाइनल से सभी सेलेक्ट होकर ऊपर आए हैं, देखना होगा। my thumb with whatever I've seen of this boy over the last 2 days is Mohammad Riyan Bash, drawn in lane 4. इसे भी हमें जो है भूलना नहीं चाहिए। और लाइनअप यहाँ पर लेन 1 लव रावत, 2 शेख अजरुद्दीन, 3 अभय सिंह, 4 मोहम्मद रियान बाशा, 5 शिवम, 6 मुथन्ना केवाई, 7 पवन कुमार एंड 8 ललित भाटी। इसके बाद बोला एशियन यूथ क्वालिफाइंग मार्क 21.65 seconds. So Rawat in 1, Azharuddin in 2, Abhay in 3, Riyan Bash in 4, Shivam in 5, Mutanna in 6, Pawan Kumar in 7 and Lalit Bhatti in 8. The finals of the boys or the men's 200 meters. An event which is always overshadowed by the 100 meters. अगर आप पूछेंगे 100 मीटर्स का ओलंपिक चैंपियन 1936 में कौन है तो आप बता सकेंगे, लेकिन 200 आप नहीं बता सकेंगे। आपका मतलब है नॉर्मल फैन। सो दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द 100. हियर दे गो नाउ, ग्रेट स्टार्ट, नो हिकअप्स, ऑन टू द बेंड, दैट्स वेयर दे आर गोइंग टू बी स्ट्रांग। लुक एट लेन 3, Abhay, oh God, someone's got a hamstring pull there. In lane 4, is that Riyan Bash or is that in lane number 6, Pawan? But yes, strong in lane 3, Abhay Singh. Oh yes, you are absolutely right. Absolutely right. Abhay Singh of Madhya Pradesh walks away with the title. बिल्कुल, और ये उनकी जो मंशा थी उन्होंने हीट्स के दौरान ही वहाँ पर दर्शा दी थी, और उसी का एक नतीजा यहाँ पर निकल के आया है कि उनके अंदर जो जोश और जो उत्साह था 200 मीटर के इवेंट को जीतने का, हीट्स के साथ साथ उन्होंने यहाँ फाइनल पर भी अपना प्रदर्शन दोहराया है। क्या बात हुई थी आपकी उनके साथ में? मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई थी, मैं आपके साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। परंतु जब हम यहाँ बैठे हुए हैं और इतने समय से अपन लोग एथलेटिक्स से जुड़े हैं, कुछ ना कुछ बॉडी लैंग्वेज जो है एथलीट की वो कह देती है, बता देती है। He certainly ran, Abhay Singh certainly ran. Tell us something more about Abhay Singh since you have seen him so often in Bhopal. जी हाँ, ये अभी मध्य प्रदेश एथलेटिक एकेडमी में इसे ज्वाइन किया है, और एथलेटिक एकेडमी में शिप्रा मसीह वहाँ के कोच हैं, उनके अधीन ये अभी फ़िलहाल जो है अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। और यदि आपको कभी मौका मिले तो मध्य प्रदेश के जो स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा जो एकेडमीज़ वहाँ चलाई जा रही हैं, आप ज़रूर एक बार वहाँ का दौरा करिएगा, वहाँ विज़िट करिएगा। वहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। हेयर द रिजल्ट्स ऑन द स्क्रीन, अभय सिंह ऑफ मध्य प्रदेश विथ 21.87 सेकेंड्स। अफसोस रहेगा कि 21.65 का जो एक क्वालिफाइंग मार्क था वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, और दूसरे स्थान पर रहे हैं शेख अजहरुद्दीन तेलंगाना के, दूसरे स्थान पर रहे हैं मोहम्मद बाश ओडिशा के 22.22 सेकंड्स के साथ, और तीसरे स्थान पर रहे हैं शिवम उत्तर प्रदेश के 22.29 सेकंड्स के साथ। Very, very sad that Mutanna from Karnataka pulled a hamstring, I think, at the 100-meter mark or a little before 100. But that's the only sad part about the 200. But what an event! What an event! Abhay Singh gets a huge applause, I think, because in a 200 to win by about half a meter or close to half a meter was fabulous, absolutely fabulous. बिल्कुल, जो फासला यहाँ पर नज़र आ रहा था फोटो फिनिश पे पहले और दूसरे विजेताओं में, ये इस तरह के शॉर्ट डिस्टेंस इवेंट्स में कुछ ज़्यादा है, और अधिकतर जो है हमें बहुत क्लोज फिनिश यहाँ पर देखने को मिलती हैं। दो 200 मीटर के फाइनल के पश्चात एक बार फिर ट्रिपल जंप की ओर रुख कर रहे हैं। सात कॉम्पिटिटर हैं मैदान में, चौथा राउंड चल रहा है।
the other factor, Varinder, which you and I seem to have forgotten for a good 2-3 minutes, is that in the 200 meters, and it's the same perhaps in the triple jump or the javelin or the high jump, particularly in the 200 meters, to run in these afternoon conditions is not easy. So that's the reason why I'd give full marks to Kushi Sadanand and Abhay Singh for a wonderful performance. Hot 35 degrees, 80% humidity, mental agility more than physical. मध्य प्रदेश में समर्स में काफ़ी गर्मी होती है, मुझे पता है. टेम्परेचर्स वहाँ भी 40-42 पे जाते हैं मध्य प्रदेश में दिन में. मध्य प्रदेश में 47 और 48 के आसपास कई इलाकों में टच करता है. आपको कितनी भी अगर आदत हो, प्रैक्टिस में शायद ठीक है, लेकिन कंपटीशन में 34 डिग्रीज, 80% ह्यूमिडिटी, मेंटल प्रेशर, ये करने के बाद अगर आप आके ये परफॉर्म करते हैं तो हैट्स ऑफ टू दीज यंगस्टर्स. बिल्कुल अपने आप को वहाँ के मौसम के प्रतिकूल ढाल लेना और फिर वहाँ पर इतना अच्छा परफॉर्मेंस करना. और अफसोस केवल यहाँ पर यही है कि वे क्वालिफाइंग मार्क को जो है नहीं टच कर पाए हैं. 755 का परफॉर्मेंस कुछ दिन पहले आपके स्क्रीन पर था. I don't know, perhaps the AFI might, and I'm just saying might, hold a trial for some of those who are very close to give them one more opportunity. बिल्कुल ये सिलेक्शन कमेटी के ऊपर निर्भर करता है और सिलेक्शन कमेटी इस तरह की प्रतिभाओं को जो है वो खोजती रहती है और मौका मिलता है नेशनल कैंप में उन्हें लेकर और उनकी प्रतिभाओं को तराशने का. और वहीं से फिर हमारे सामने नीरज चोपड़ा जैसे निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी सामने आते हैं. युवराज के 13.36, 14.26 और 13.79. बहुत ही रोचक इवेंट आगे आज देखने को मिलेगा. स्टीपल चेज के फाइनल भी यहाँ होने हैं, यूथ मेन और यूथ विमेन के. फिलहाल तैयारी उसी की चल रही है. ट्रैक पर आप देख रहे हैं. हम बात करते हैं नीरज चोपड़ा की, लेकिन ना भूले व्यूअर्स, ना भूले दर्शक कि एक ऐसे नाम है जिसने जबकि हम ट्रिपल जंप के ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, लेकिन ना भूले अविनाश साबले को कि 28 साल में जब कीनियंस 1, 2 और 3 नंबर उन्होंने कभी नहीं छोड़ा था. मुझे अभी भी याद है 2004 में जब मैं एथेंस में था ओलंपिक्स में, वहाँ भी कीनियंस ने 1, 2, 3 किया था और वो ये 1, 2, 3 का कभी सोचा भी नहीं था उन्होंने क्या एक लड़का आएगा महार रेजिमेंट का अविनाश साबले, और वो भी हिंदुस्तान से और उनको हिलाएगा. बिल्कुल कीनियंस को झकझोर कर रख दिया था उस टाइम साबले. We are talking about this because the next event is the 2000 meter steeplechase, and I'm sure it's a wonderful event again. Wonderful, the water jumps, the hurdles. It's all about tactics. Every millisecond counts at each of the stages. ठीक अभी से 15 मिनट बाद ये रोचक मुकाबला यहाँ पर मिलेगा. 2000 मीटर स्टीपल चेज यूथ मेन के फाइनल का, और 3:50 पर होगा 2000 मीटर स्टीपल चेज यूथ वुमेन का फाइनल. $591 एस पुनीत. कर्नाटका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रिपल जंप के इस इवेंट में. 13.18 मीटर का जंप रहा है उनका. $200 मीटर वुमेन और 200 मीटर मैन के बहुत ही अच्छे रोचक मुकाबले यहाँ हमको देखने को मिले हैं. फिलहाल 565 साहिल यादव
13.49, 13.58, 13.47, लेकिन उसके बाद बिल्कुल ही परफॉर्मेंस नीचे 12.19। और अभी इस फिफ्थ अटेम्प्ट में उन्हें देखना होगा कि क्या परफॉर्म करते हैं। $12.94 परफॉर्मेंस में गिरावट। आज सुबह से ही चर्चा चल रही थी हेप्टाथलॉन की। हेप्टाथलॉन की तरफ भी हमारी नज़रें रहेंगी। उसका आखिरी इवेंट 800 मीटर अभी बचा हुआ है और पहले और दूसरे स्थान के अंदर फासला भी बहुत कम हो चुका है। Make sure that the triple jumper runs up to the board at the fastest speed that one can handle. You got to hit the board accurately like the long jump. Gain the greatest distance in the 3 phases. Remember, the long jump you got 1 phase, in the triple jump you got 3 phases, and then land in the pit like a long jumper in the best position without falling back. In addition, of course, a triple jumper has to conserve the run-up speed for all the 3 phases. You can't say मैंने hop में अच्छा किया है लेकिन step and jump you did not execute properly, and that's why the 3 phases have to be distributed as you now watch very carefully. The hop, the step and the jump. सन्नी राज यहाँ पर पहला उनका फाउल रहा था। दूसरे और तीसरे जंप में 13.80 और 13.58 किया। उसके बाद 2 लगातार फिर उनके फाउल हुए हैं और ये अंतिम प्रयास उनके पास अभी है। The triple jump which you just watched is one continuous action from the first stride of the run-up to the final landing in the pit. 14.24, and that for Sheikh Jisan of Uttar Pradesh. So the high jump at 2 meters, a lone survivor at 2 meters, qualifying mark 1.97. Looks as if Sarthak Shivaji Nimbalkar, is it? The Maharashtra boy, tall, looks close to 6 feet plus. But Tejaswini Shankar's record of 2.26 I don't think will be touched for a long time. India International, Tejaswini Shankar, keep on telling you that he trains at the University of Kansas in the United States, a regular at the NAA, the National Championships in the United States, as also the Collegiate Championships. 2 meters now. He will take his time. He knows that it's a big moment. We'll try and perhaps check if Maharashtra has produced a high jumper of repute over the years. I can't think of a name, but Sarthak Shivaji Nimbalkar at 2 meters.
पहला प्रयास उनका जो था उसमें वो असफल रहे हैं। 2 मौके और हैं उनके पास। फिलहाल अपने कोच से सलाह मशवरा करते हुए Varinder, 1.97 is the qualifying mark. So, you mentioned some time back that at 1.90 they were supposed to increase by 2 centimeters. बिल्कुल 1.90 के बाद में 3 सेंटीमीटर का इंक्रीज था अप टू 2.02 मीटर्स तक, और उसके बाद 2.02 के बाद में जो है 2 सेंटीमीटर्स का जो है वो रेस होनी थी बार। फिलहाल 3 सेंटीमीटर का है और हाइट 2 मीटर की है। और कॉम्पिटिटर केवल एक, सार्थक शिवाजी निम्बालकर, महाराष्ट्र के। Has Maharashtra produced any? So I remember high jumping now a popular sport in Maharashtra. The reason why I'm saying this is that you got one boy there on a picture frame attempting 2 meters, whereas Maharashtra had never. I've been following that sport now there for a long time. So Sarthak attempting 2 meters, and that's why I asked you. At 1.90 they were supposed to increase by 2 centimeters. 3 centimeters. Which means he would have achieved. Oh God, nearly there. सेकंड अटेम्प्ट था उनका ये, और काफ़ी नज़दीक तक पहुंच गए थे, लेकिन हिप्स उनके जो थे वो टकराए और बाहर सीधे मैट्रेसेस पर। और फिर अपने कोच के पास गए हैं, उनसे विचार विमर्श करने, उनसे सलाह लेने, अपनी गलती को वहाँ पर परखने के लिए। और 2 मीटर की ये हाइट, और महाराष्ट्र से निकल कर आ रहे हैं एथलीट हाई जंप इवेंट के अंदर भी। और देखा जाए तो एथलेटिक्स की जो प्रतिभाएं हैं, ट्रैक एंड फील्ड के विभिन्न इवेंट्स की, ट्रैक एंड फील्ड की, फ़िलहाल सारे हिंदुस्तान में ही हर तरफ इसकी लहर है। लेकिन 651 सार्थक शिवाजी निम्बालकर एक हाई जंप इवेंट में जो उभर कर यहाँ सामने आए हैं। प्रयास रहेगा इस तीसरे अटेम्प्ट में वे इसे क्लियर करें। ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, थोड़ा सा अपने आप को तरोताज़ा करते हुए। लास्ट अटेम्प्ट। टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, 34-35 डिग्री के आसपास का ही यहाँ पर अभी फ़िलहाल तापमान है। माय डियर फ्रेंड, ह्यूमिडिटी काफ़ी है। माय डियर फ्रेंड वीरेंद्र, आप शेड में बैठे हैं तो आप कह रहे हैं कि 34-35 ज़्यादा नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिशन्स तो हमेशा बाहर ओपन में ही होते हैं, इसी धूप में होते हैं और इससे ज़्यादा तापमान में भी होते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु निश्चित रूप से खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर ह्यूमिड होने के कारण यहाँ जो है थोड़ी सी एक दिक्कत महसूस हो रही होगी कॉम्पिटिशन्स में। 651 सार्थक शिवाजी निम्बालकर, एक बार फिर अंतिम अवसर, लास्ट चांस, हाई जंप बॉयज यूथ का ये इवेंट। और यहाँ चुनौती उनकी समाप्त हुई, और निश्चित रूप से हाई जंप यूथ के विजेता भी सार्थक ही हैं। और इंतज़ार रहेगा नतीजों का। रिजल्ट्स कंपाइल होने के पश्चात हमारे जो कंपटीशन सेक्रेटरी हैं उनके पास पहुंचेंगे और उसके बाद ही उसके रिजल्ट्स हमारे पास पहुंचेंगे। टेक्निकल डेलीगेट के माध्यम से उनको वेरीफाई कराया जाएगा। और तैयारी अब पूरी है उस रोचक इवेंट की। देखिए, जो हम बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अर्लियर ऑन, वरेंदर, दैट
we see so many of the youngsters taking part in the javelin throw. Why? Neeraj Chopra. Now look at the list here. 25 कॉम्पिटिटर्स। मुझसे तो पढ़ा नहीं जाएगा, 25 नाम है यहाँ पर। बिल्कुल, इतना लंबा इंट्रोडक्शन। So what does it mean? What does it mean? It means that Avinash Sable has made an impact on the youth of this nation. There is an event called steeplechase also. बिल्कुल सही कहा आपने, अविनाश साबले को हमने भूलना नहीं चाहिए। और ये इतनी लंबी संख्या, इतनी बड़ी संख्या में जो यहाँ कॉम्पिटिटर्स हैं, स्प्लिट स्टार्ट किया जाएगा 2000 मीटर स्टीपल चेस के लिए और 25 कॉम्पिटिटर्स यहाँ पर हैं। और यदि हम नज़र डालें जो राज्य जहाँ पर हैं, सबसे पहला नाम ही ऊपर सिक्किम का नज़र आ रहा है, उत्तर पूर्वी राज्य, और उसके पश्चात दक्षिण भारत की ओर है तेलंगाना, तमिलनाडु, फिर हम मध्य की तरफ हैं, मध्य भारत और दिल्ली, और उत्तराखंड भी है, महाराष्ट्र, और साथ ही साथ यदि हम देखें गुजरात। और सबसे एक अच्छी बात यहाँ दिख रही है कि सिक्किम उत्तर पूर्वी राज्य से 2 पार्टिसिपेंट है 2000 मीटर स्टीपल चेस बॉयज अंडर 18 में। Yes, the steeplechase describes to the basic tenets of running and hurdling in that it requires the minimum rise and the fall of the runner's center of gravity throughout the race. The national record, Jinav Singh at Hisar 5:48.90 2000. 13 years the record has not been broken. The meet record, Mohammad Noor Hassan at Vadodara 5 minutes 54.37 in 2018, and what they need to achieve is 608.77, an event which has been the domination of the Kenyans at the world level, and we keep on emphasizing that these 25 boys, देखिए स्क्रीन के ऊपर देखिए, एथलेटिक्स का मेला लगा हुआ है आज ट्रैक पर। 25 प्रतिभागी एक ही ग्रुप में फिलहाल चल रहे हैं। What a sight, what a sight. This is what I think I have loved मुझे लग रहा है इतने सारों के बार बार वाटर जंप में जंप मारने से कहीं भी उस पिट का पानी कम ना हो जाए। Yes, the steeplechase, one of the second requirements is that there should be as little possible speeding up and slowing down, essential, so that the overall pace can be kept as even as possible. This is the 2000 meter steeplechase and not the 3000 meters, which is run guard. 3 of them have gone down. That's what's going to happen when you have a bunch of 25. They need to be careful. And the steeplechase, of course, differs very much from the 110 meters and the 400 meters hurdling. Needless to say that in that the later events, the competitor runs in his own lane, whereas in the steeplechase, that any mistake that he makes as a result of his own errors, whereas here the mistakes can happen due to someone else's error as well. बिल्कुल, हर्डल्स के क्रॉस करने के समय पर इस तरह के जो पहले अभी एक इंसिडेंस हमें नज़र आया है, कुछ लोग गिरे हैं, वो क्या है कि कई जो एथलीट हैं स्टीपल चेस के, उनका जो मूवमेंट है हर्डल क्रॉस करने का बिल्कुल साफ क्लियर रहता है। कुछ हैं जो कि उसको पैर रख के आराम से करते हैं और पीछे जो दूसरा आ रहा होगा उसका फोर्स उसको जब मिलेगा तो इस तरह की घटनाएं होने की संभावना है, क्योंकि काफ़ी बड़ी तादाद में एक साथ यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और फिलहाल 583 सुमित राठी जो कि हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं 2000 मीटर स्टीपल चेस में। Now the chalk is being separated from the cheese, the top hurdler out there, and when you look at that hurdling, the action of the steeplechase is actually identical to that of the 400 meters hurdler. For after all, their objective is the same, a low flat clearance. That's what the hurdling in the steeplechase is all about. And the difference, of course, in the steeplechase and the 400 meters hurdling lies in the speed of the attack and the fact that the steeplechase makes, or the steeplechaser makes his clearance surrounded by other runners, whereas in the 400 meters you're not surrounded by the other runners, and over the barrier, which of course can do great damage. And you just mentioned about that damage where 3 or 4 of them went down in a tumble. जी हाँ, लेकिन यहाँ पर अब सभी बिखरते हुए, और मुकाबला जो है यहाँ पर क्लियर जो है वह सुमित राठी, महेश सल्ला और सऊद हसन के बीच में नज़र आ रहा है। लगभग 10 मीटर की लीड इन्होंने प्राप्त कर ली है। 3 का पंच आगे चल रहा है। सऊद हसन मध्य प्रदेश,
सुमित राठी हरियाणा और महेश साला तेलंगाना। Virender, the new concept or the new training concept is that a 1500-meter runner now graduates to become a 3000-meter steeplechaser also. So he stops taking part in a 1500 meters but graduates to take part in a 3000-meter steeplechase. इसका एक कारण जो पहले रहा है, जहां हमने देखा है कि स्टीपल चेज के अंदर एक समय था कि कंपटीशन कम होता था, कॉम्पिटिटर्स कम इस तरफ आते थे, लेकिन आज यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में कॉम्पिटिटर्स स्टीपल चेज की तरफ हैं, तो ये जो ट्रेंड था कि 1500 से इस तरफ आना, वो लगता है कि थोड़ा सा उसमें ब्रेक लगेगा और स्टीपल चेज की तरफ रुझान एथलीट्स का जो है वो स्पष्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इसको भी अब एथलीट्स अपनाने लगे हैं। फिलहाल सुमित राठी और महेश सल्ला आगे हैं और सऊद हसन, और ये यहाँ पर बेल इंडिकेट कर रही है कि ये लास्ट लैप है 2000 मीटर स्टीपल चेज के लिए। पेस में बढ़ोतरी हो चुकी है, मुकाबला कड़ा हो चुका है। पहले और दूसरे स्थान के बीच में 583 और 722, 583 सुमित राठी और महेश सल्ला बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हुए आखिरी 200 मीटर की दूरी शेष रह गई है। एक शानदार दौड़ और शानदार जीत दर्ज करेंगे इसमें। फाइव 583 सुमित राठी हरियाणा के अंतिम हडल को उन्होंने क्रॉस किया। 10 मीटर से अधिक लीड के साथ फिनिश करने जा रहे हैं। पहले स्थान पर हरियाणा के सुमित राठी और दूसरे स्थान पर रहे हैं तेलंगाना के महेश सल्ला। और तीसरे स्थान पर हैं भानुथु चंद्रशेखर तेलंगाना के। एक अच्छा मुकाबला, एक रोचक मुकाबला, बड़ी संख्या में पार्टिसिपेशन, और देखना होगा टाइमिंग क्योंकि कंपटीशन काफ़ी तगड़ा था। 5 मिनट्स 51.94 सेकंड के साथ सुमित राठी ने पहला स्थान अर्जित किया है और 5 मिनट 55.52 सेकंड्स के साथ में दूसरे स्थान पर रहे हैं महेश सल्ला। क्वालिफाइंग मार्क रहा था 6 मिनट्स 08.77 सेकंड्स का। सुमित राठी हरियाणा के 5 मिनट 51.94 सेकंड के साथ पहले स्थान पर। जो क्वालिफाइंग मार्क था उनको पहले और दूसरे दोनों ही धावकों ने अचीव कर लिया है। एशियन यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए उज़्बेकिस्तान के लिए अपनी सीट यहां पर पक्की करते हुए। और जल्द दूसरा मुकाबला ट्रैक पर आयोजित होगा 2000 मीटर स्टीपल चेज गर्ल्स अंडर 18 का, और नतीजे आपके स्क्रीन के ऊपर। बॉयज यूथ के तीसरे स्थान पर रहे हैं बनोद चंद्रशेखर तेलंगाना के 6 मिनट 02.35 सेकंड्स के साथ, और चौथे स्थान पर रहे हैं हरिओम सेन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों ही जो विनर्स हैं, चारों ने क्वालिफाइंग मार्क को अचीव किया है 2000 मीटर स्टीपल चेज बॉयज यूथ में। This is what
fate or travesty is all about. This girl standing to my right was born in Pennsylvania. Pennsylvania, of course, is a historical place in the United States of America. And she has an American passport. Now, I'm going to ask her, obviously, how does she manage to run in in a US passport in India? But that's on the lighter side. I'm just joking out here. So the journey from Pennsylvania in the United States to Pune has been phenomenal. A third in the 400 meters here in the 18th National Youth Championships. And now, gosh, when I was doing the commentary, I said lane 3, 4 and 5. And I didn't even give her a chance in lane number 6. And that's the beauty of sports. You come from somewhere and nowhere and go on to win. So much for my introduction. Here I've got Khushi, Sadhana, Umesh. You got that smile on your face. The celebrations have started, is it? Yeah, I'm just really happy that all my hard work has come to fruition, Been working hard since the past 2 months just for this event. And now the job's not done yet. The main thing is Asian Youth, but I'm still happy right now. The 24.79 was the qualifying mark, and I think you've achieved that qualifying mark. In fact, 1, 2 and 3, all three have achieved that qualifying mark. You go back to lane 3, Rizona. She's been outstanding in the last 3 days. I watched a fair bit of her in Guwahati, where she was there in the junior nationals. Nancy, again, good at the 200 and the 400. And Isha Rajesh Yadav. Now, you came from nowhere to pip them. What was it? What was behind it? I just told myself before coming out that just have fun, just know that, you have the speed, you have the preparations, just go out and execute it just like my coach told me to. That's it. You're a young girl, under 18, but I'm sure the youngsters today start thinking much ahead than what we did when we were, 30 or 40 years ago. I started off by saying a US passport, born in the United States. Sometimes do you turn around, I know your Mr. Coach will not like that, but and I'm going to talk to him about that. Sometimes do you sit back and say, let me go back to the United States where the infrastructure perhaps is better, or, and I'm emphasizing on that, the AFI now is doing a wonderful job. Yeah, I don't know where life will take me, and I'm just gonna keep doing what I do right now and hope, I end up doing a good thing here. You look at the 200 and the 400, why not the 100? Or is it also the 100 in your kitty? No, I've never tried the 100. It's always been 400. Actually, first it was the 600, and now come down to 400 and 200. Sadly, in my 4 decades of commentating, we all remember a 100 meters champion right from 1896. And if you ask someone who has been the 200 champion, you might scratch your head, or even the 400, except for Michael Johnson, perhaps. Of course, as a commentator, I know a lot of the 400 guys, But doesn't that sort of induce you into saying that I should also look at the 400, and I'll get to Arjun also? People only used to pay attention to the 100 meters, but now, like with the likes of Sydney McLaughlin and all, the attention is also coming to 400, even 400 hurdles. So I guess it's about the athlete and their performance more so. 2 different events, the 200 and the 400. How do you balance the training in both? I really don't know. Just do. Wonderful. Yeah. So, Khushi there, the 200, Arjun trains her. She's been there for a month now. In the wonderful hill station of Udupi, getting crowded now, but wonderful place where so many of them train these days. Arjun, the 200 and the 400, your thumb for her on one? 400 actually, because she has a basic speed, and she had 11.5, 11.6 speed clocking, and then I knew that we could work on our strengths and then put her into 400. Eventually, the goal has to be for an Indian. I prefer it's a 400 because from the times of Milkha Singh sir and P.T. Usha ma'am, that is where we missed the medals narrowly in the Olympics. And the 400 meters is very suitable for the Indians. Comparing the speed and endurance and hard work, we can get that is what I strongly believe. So I wanted her to try the 400. Once you're stronger in 400, definitely they are going to rule in 200. It's naturally going to come. And the question which I asked her, why not the 100 for her?
100 maybe later on, but as of now we want to work on the muscle endurance and all the sprint technique and all the stuffs, and maybe once she gets to like 11.2 in an electronic, so maybe then we can try 100 meters. So the door is open. You were there on the sidelines when she took to the blocks in the 200. Did you give her a chance at all, or did you? A week ago when we had a time trial of 150 meters in Bangalore, Kushi's was the fastest time and it was closer to Priya Mohan's 150 meter time of 17.4. So I told her you can get that national record actually. And then Rezwana Malik also at the other end had an eye on it, but she was close to the national record with the 24.23 in semi-final. You can't take away from that. But I guess Rezwana Malik ran faster and all out 400 meters, and Kushi had some much more in the rank in 400 meters, so body was a little fresh and she could win the race. I told her it's just Noah Lyle stuff, you need to go in lane 6 and get that gold. And finally, I did mention to her about the AFI. Phenomenal, isn't it? The last 5 months I've been commentating on 3 big events for the youth. There is so much. We also just saw the 2,000 meters steeplechase, 25 runners. Avinash Sable perhaps making an impression. Everyone talks of Neeraj Chopra, but you have the walkers, you have the triple jumpers, and your Indian athletics is looking good, isn't it? It is definitely coming up, sir, and we need to stretch our limits in the vision, and we can get those global medals. We are following Neeraj Chopra, and Neeraj Chopra proved it us to her. And then Avinash Sable and all the jumpers, all Eldos Paul and Abu Bakar and everyone. So we are all as a team moving ahead, and the federation has been doing phenomenal initiatives to get us on top. You know, you also had one last question. Go back to the 70s and the 18s. You know, Jackie Joyner Kersey, Florence Griffith Joyner, the 100, the 200, and the long jump. Any eye on the long jump? No, sir. Long jump is a technical event, and I prefer a jumper coach who train for that. And we are basically into 100, 200, and 400. Basically 400. So maybe if they are really good, we might shift to 200 and 100. Well, there you are. A bright future for Indian athletics. We've just spoken to one of them. How I wish we could have spoken to about 600 or 700. But life is such that you're one winner, and you always catch the winner in a chat. A live telecast here continues on the AFI channel. Plenty of action coming up on the final session of day 3.
एक बहुत ही रोचक मुकाबला कुछ समय पहले ट्रैक पर आयोजित हुआ 2000 मीटर स्टीपल चेज बॉयज़ यूथ का, और उसके बाद एक बार फिर ट्रैक पर 2000 मीटर स्टीपल चेज यूथ गर्ल्स का मुकाबला होने जा रहा है। 19 प्रतिभागी हैं, 19 कॉम्पिटिटर हैं। जी मिलिंद जी। So Virender, the same question. 25 in the boys and now 19 in the girls. I'm so happy that the steeplechase today is becoming a favorite event and popular with the boys and the girls. बिल्कुल, और इसमें यदि हम सुधा सिंह को यहाँ ना याद करें, सुधा सिंह ओलंपियन हमारे हिंदुस्तान की, और साथ ही साथ पारुल चौधरी फिलहाल इस इवेंट में आगे बढ़ रही हैं। So 19 कॉम्पिटिटर और क्वालिफाइंग मार्क 7 मिनट 16.69 सेकंड्स का, और नेशनल रिकॉर्ड पारुल चौधरी का मैंने नाम लिया, और देखिए पारुल चौधरी का नाम यहाँ नेशनल रिकॉर्ड है 7 मिनट 06.49 सेकंड्स के साथ, और मीट रिकॉर्ड पर हैं काजल शर्मा 7 मिनट 11.99 सेकंड्स के साथ। रितु चौधरी, साक्षी, सुस्मिता, उर्मिला, जसप्रीत, खुशी भाटी, पूजा, नित्या, खुशबू, मंसिमा, वैभवी बेन, चेरीपेली, चित्रा सी, दीपाक्षी, सुनीता, मेहरदीप, काजल बेन, कृतिका और सबीना राय। So yes, 19 of them starting out on this journey of the 2000 meter steeplechase. Of course, this is the event which subscribes to the same psychological requirements as the other distance runs, in that even the pace is best. Errors, of course, are likely to be more severely punished in the steeplechase than in the races, simply because of the demands which the barriers impose. Oh, there you are. That's exactly what I mentioned. These are the demands that are imposed on these athletes. Leading there at this point of time is Khushi Bhatti of Delhi, and closely bunched together. Virender, this I suspect should be a close one, 1, 2, 3, and who knows, you can suddenly see someone from the inside there slipping into fourth position. But at this point of time, these three are holding the fort. बिल्कुल, शुरुआत पहले लैप में ही जो बढ़त प्राप्त की है इन तीन एथलीट्स ने, खुशी भाटी, नित्या सीआर केरला की और चेरीपेली कीर्थना तेलंगाना की। खुशी भाटी दिल्ली की है, शुरू से ही बढ़त बनाकर चल रही हैं, लेकिन अंतिम क्षणों तक देखना होगा, लास्ट 100 मीटर में जब ये पहुंचेंगी तब स्थिति क्या रहती है। लेकिन शुरू के पहले लैप में ही बिखराव पूरे इस 19 एथलीट्स का स्पष्ट यहाँ पर नज़र आया है। थोड़ी देर पहले 2000 मीटर स्टीपल चेज बॉयज़ का था, 25 की तादाद में थे, लेकिन शुरुआती लैप में जो है पूरा बंच एक साथ चल रहा था, और वहाँ पर मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि यहाँ ट्रैक पर आज एथलेटिक का मेला लगा हुआ है, परंतु यहाँ बिखराव नज़र आ रहा है। और Yes, पूजा, yes, there can't be a better. Oh God, she's gone for a swim there. She's gone for a swim. This is what steeple chasing is all about. नित्या सीआर थी ये केरला की, अपना संतुलन खो बैठी इस वाटर जंप के टाइम पे, लेकिन रिफ्रेश हो गई होंगी उसके बाद। Well, the steeplechase, of course, what separates the steeplechase from the distance runs is the need to secure clear, trouble-free approach to each obstacle, and this may mean occasionally moving out, thus covering the extra distance and temporary breaks in rhythm. But the overriding need to secure an economic clearance at each obstacle has to continue to prevail. खुशी भाटी दिल्ली की एक अच्छी लीड के साथ आगे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तारीफ करनी होगी नित्या सीआर केरला की, जो वाटर जंप में जो हैं अपना बैलेंस खो बैठी थी, पुनः उठी और फिर आगे चल दी, अभी भी अग्रसर है दूसरे स्थान पर। और तीसरे स्थान पर चेरीपेली तेलंगाना की काफ़ी पीछे। लगभग एक लैप की लीड देने जा रही हैं खुशी।
ये है 292 चेरीपल्ली कीर्तना तेलंगाना की, जो फिलहाल तीसरे स्थान पर है। The winner of the silver medal, Mohammad Rayan Basha, representing Cheripalli, Bhati, Cheripalli Kirtana of Telangana, of your picture frame. The water jump, Virender, seems to be the difficult part for these girls. So I'm sure that's an area which the coaches would be watching here. And when they, of course, go back tomorrow, an area which they'd like to iron out is the water jump. They're doing well at the hurdling, as you now watched. But the water jump seems to be the nemesis of these young girls. वही अभी हमने देखा चेरीपल्ली का जो हर्डल क्रॉसिंग था, काफ़ी इम्प्रेसिव था। थकान कहीं से वहाँ नज़र नहीं आ रही थी हर्डल क्रॉस करते समय, लेकिन पिछड़ गई हैं। 19 of them. अरे लीडिंग रनर्स को लो ना फ्रेम में भाई। टू 292 जो तीसरे स्थान पर चल रही हैं चेरीपल्ली, फिलहाल आपकी स्क्रीन पर। और फिलहाल यहाँ पर कुछ स्थिति में परिवर्तन नज़र आ रहा है। देखना होगा लास्ट लैप पर जब बेल रिंग करेगी 164 क्या एक लैप का यहाँ पर जो है मात खाने जा रही हैं, लेकिन उम्मीद इस तरह की नज़र नहीं आ रही। खुशी भाटी शुरू से ही काफ़ी अच्छी लीड के साथ आगे चल रही थी, लेकिन देखिए वाटर जंप की ओर फिलहाल 164 जसप्रीत कौर हरियाणा की, जो कि पहले चौथे स्थान पर चल रही थी, और यहाँ पर ये बेल रिंग करी है। टू 92 चेरीपल्ली कीर्तना के लिए ये इंडिकेशन था, उसका ये लास्ट लैप है। अचानक ही निकल कर आगे आई हैं, और दूसरी बेल यहाँ पर है 164 जसप्रीत कौर, जो कि हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रही हैं। लगभग 200 मीटर की लीड चेरीपल्ली और जसप्रीत के बीच। एक अच्छा परिवर्तन यहाँ पर 2000 स्टीपल चेज के अंदर। चेरीपल्ली कीर्तना वाटर जंप के बाद आखिरी हर्डल की ओर आगे बढ़ती हुई। शुरू के लैप्स में काफ़ी अच्छी बढ़त प्राप्त की थी खुशी भाटी ने, परंतु चेरीपल्ली कीर्तना तेलंगाना की बहुत स्पष्ट जीत यहाँ पर दर्ज कर रही हैं, फिनिश करते हुए पहले स्थान पर। और दूसरे स्थान पर हैं जसप्रीत कौर, बिब नंबर 164 वाटर जंप के बाद आखिरी हर्डल क्रॉस करती हुई। हर्डल क्लियरेंस देखिए, आखिरी मौके पर भी कितना स्पष्ट और क्लीन हर्डल क्लियर किया है, परंतु काफ़ी लीड उन्हें मिली, और ये दूसरे स्थान पर फिनिश किया जसप्रीत कौर ने। और तीसरे स्थान पर रही हैं 122 काजल बेन मंजीब गुजरात की। टाइमिंग आपके स्क्रीन के ऊपर चेरीपल्ली कीर्तना तेलंगाना की 7 मिनट्स 22.55 सेकंड के साथ ये पहले स्थान पर रही हैं। क्वालिफाइंग मार्क को अचीव नहीं कर पाई। क्वालिफाइंग मार्क रहा है 7 मिनट 16.69 सेकंड्स का।
एक अच्छा अवसर यहाँ पर था, परंतु फिर वही बात यहाँ पर दोहराऊंगा कि यदि कंपटीशन तगड़ा हो, पहले दूसरे तीसरे चौथे कम से कम 3-4 एथलीट शुरू में बंच में चल रहे हों, तो मुकाबला कड़ा हो जाता है और परफॉर्मेंस अच्छे आने की उम्मीद होती है। यहाँ अकेली चल रही थी चरिपली कीर्तना। शुरू के जो 2 लैप थे उसी में बिखराव आ गया था पूरे 19 एथलीट्स में। और इंतज़ार हमें ऑफिशियल टाइमिंग का। इवेंट जो इसके पश्चात हमारे सामने शेष है 800 मीटर हेप्टाथलॉन, जो कि आखिरी इवेंट होगा गर्ल्स अंडर 18 के हेप्टाथलॉन का, और वही निर्धारित करेगा पहले और दूसरे स्थान के विजेताओं को। क्योंकि फिलहाल 6 इवेंट के बाद जो स्थिति यहाँ निर्मित हुई है, मुबासिना मोहम्मद जो कि 5 इवेंट तक दूसरे स्थान पर चल रही थी, 6 इवेंट के बाद वो पहले स्थान पर आ गई हैं, और दूसरे स्थान पर है मोहर मुखर्जी। और अंतिम इवेंट 800 मीटर जो है वही निर्धारित करेगा कि कौन विजेता होगा। एक और रोचक मुकाबला जो आज यहाँ पर होने जा रहा है, तीसरे और अंतिम दिन के अंतिम 2 प्रतियोगिताएं, स्प्रिंट मिडले यूथ गर्ल्स और यूथ बॉयज़ के फाइनल आयोजित किए जाएंगे। This boy stands tall at 1 meter 81. He's just given his passport, or he's just applied for his passport, and he won the high jump today. So obviously the passport these days comes in just about 2, 3, 4, 5 days. Sarthak Nimbalkar from Kolhapur trains in Pune. Kolhapur, of course, known for wrestling and some of the other sports at the local level. Sarthak, आपने 2 मीटर अटेम्प्ट की थी, 197 जो रिकॉर्ड था वो आपने हासिल कर दिया था। तो हाई जंप में आपका कोई हीरो है जो जिसको आप फॉलो करते हैं? मेरा हीरो है अभय गुरु, वो उसका बेस्ट 211 है, वो मेरे इंस्पायर है। तो ये बताओ कि तेजस्विनी शंकर 226 का यहाँ पर रिकॉर्ड था, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? सर वो बहुत अच्छा जंपर है। मेरा अगला टारगेट 230 है, नेशनल रिकॉर्ड तोड़ना है। आप कोल्हापुर से आते हैं जहाँ पर रेसलिंग अखाड़े काफ़ी है, तो हाई जंप आपने कैसे अपनाया? मेरे कोच ने मेरा हाइट देखकर हाई जंप में बुला लिया, इसलिए मैं हाई जंप में आ गया। और मेरे को मैं लाइक भी करता था हाई जंप में, इसलिए। आप कोल्हापुर से आते हैं, पुणे में ट्रेनिंग करते हैं, आपके ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताइए हमें। मेरा ट्रेनिंग दिन में 8 घंटा चलता है, सुबह 4 घंटे और शाम को 4 घंटे। मेरे जो भी कोच है, माने सर, महेश सर, रूपाली मैडम, अभय गुरु सर, ये सब मेरा वर्कआउट लेते हैं। धैर्यशील गायकवाड़ सर, ये सब वर्कआउट लेते हैं मेरा। आज आखिर में सिर्फ अकेले थे 2 मीटर्स पे, और उसके पहले भी। तो जब अकेले होते हैं तो मोटिवेशन कैसे आता है? क्योंकि जब कंपटीशन होती है तो आदमी और अच्छा करता है, नहीं? हाँ, मेरा मोटिवेशन सिर्फ यही है कि नेशनल रिकॉर्ड तोड़ना, वो कुछ भी हो जाए नेशनल रिकॉर्ड तोड़ना अगले साल, यही मेरा मोटिवेशन है सर। और आप पढ़ाई और जो 8 घंटे की ट्रेनिंग है, बैलेंस कैसे करते हैं? सर मैं दिन में 6 घंटा पढ़ता हूँ। मेरा कॉमर्स में, मैं 11th में, सब मैनेज होता है सर। डे का टाइम टेबल होता है सर दिन में। और ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जो अलग अलग यूथ, जूनियर, नेशनल्स किए हैं, स्टेट लेवल पे होती है, जाहिर है कि आपको इससे बहुत फ़ायदा होता होगा। हाँ सर, बहुत होता है। इसलिए कंपटीशन क्या चल रहा है, अपने को क्या प्रैक्टिस करना है, सब कहता है। और एक सपना होता है
आपने नेशनल रिकॉर्ड की तो बात की, और क्या सपना है आपका? इंडिया को रिप्रेजेंट करना, वेल, इंडिया को रिप्रेजेंट करना, ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट करना बस। इंडिया को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करना, दैट्स द ड्रीम ऑफ एवरी चाइल्ड. रिमेंबर सार्थक निम्बालकर, दिस नेम you'll hear about him many more times. There's also another Nimbalkar that this nation is proud of, and I don't know whether he knows of that name. Sachin Nimbalkar from the 18 Grenadiers who got a Veer Chakra in the Kargil war. So the Nimbalkar name is becoming very popular in the country. Winner of the high jump here in the boys section, attempting 2.00, didn't clear, didn't really matter, but he's qualified for a trip to Tashkent in Uzbekistan.
Now this is going to be the big one. Virender and I have been talking about the girls 800 meters heptathlon. This is the final event. We got the top two leaders out there, Mubasina Mohammed and Mohar Mukherjee, along with Richa Yadav and Bhuwana Saria, Janice Regi as also Thakur. And here they set off in the 2 lap with the position after the 6. Mubasina Mohammed 4,138 points and Mohar Mukherjee 3,971. So, Virender, it simply means that if Mubasina doesn't even win, she finishes, let's say, third, and Mohar Mukherjee finishes behind her, then it's very clear. कोई चेंज नहीं होगा, पोजीशन वही रहेगी. In case Mohar Mukherjee finishes above Mubasina, then the question will be what will be the points that she has got and what has Mubasina got. सही कहा आपने. फिलहाल हमारे पास जो फ्रेम में नज़र आ रहे हैं, लीडिंग 207 मुबसिना मोहम्मद आगे दिख रही हैं. और यदि हम नज़र मारें मोहर मुखर्जी के बिब नंबर 28 की तरफ, तो फिलहाल चौथे 5वें नंबर पर नज़र आ रही हैं. सो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि अगर मुबसिना जीतती हैं तो जो कुछ पॉइंट्स ले जाती है वो मोहक से बिल्कुल दे विल डेफिनेटली बी मच हायर. एज इट इज द डिफरेंस इज अबाउट स्क्रीन पर नज़र डालें, पहले और दूसरे स्थान यदि हम देखें लगभग 10 मीटर से ज़्यादा की लीड अर्जित कर रही है. और पहले स्थान पर जो है मुबसिना मोहम्मद ही है अभी फ़िलहाल लक्षद्वीप की. और उनके साथ फॉलो कर रही हैं 109 हर्षिता गोस्वामी दिल्ली की. So what you're saying is even before this event finishes, the winner of the heptathlon has been decided. बिल्कुल बिल्कुल वो डिसाइड हो चुका है. यहाँ बस ये है कि फिनिश लाइन तक मुबसिना को पहुँचना है, फिनिश लाइन क्रॉस करनी है. Oh yes, of course, that's the most important thing. That is the most important Yes, very true. Till you don't finish, nothing is ever said. But well, the way she is gliding there doesn't seem to be any worry for her. You know, but the lesser or the more you talk about this girl, कम होगा मेरे ख्याल से. लेकिन जीत यहाँ स्पष्ट नज़र है. कम से कम 4 से 5 मीटर की लीड के साथ यहाँ फिनिश कर रही हैं 800 मीटर मुबसिना मोहम्मद लक्षद्वीप की. और इसी के साथ यहाँ पर इस मुकाबले में भी उनने अपने आप को अव्वल साबित कर दिया है यूथ विमेन हेप्टाथलॉन में. तो वरिंदर, ये भी दर्शाता है, लोग कहते हैं कि अगर आप लॉन्ग जंप में अच्छे हैं तो शायद 100-200 में अच्छे हो सकते हैं. लेकिन ये लड़की ने तो कमाल कर दिया. लॉन्ग जंप मेन इवेंट जीती, लॉन्ग जंप यहाँ पर भी हेप्टाथलॉन में अच्छे पॉइंट्स मिले और 800 में भी जीती है. सही कहा आपने. कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड के ये कंबाइंड इवेंट्स होते हैं. इसको कंबाइंड इवेंट का नाम दिया जाता है हेप्टाथलॉन, जिसमें विभिन्न 7 प्रतियोगिताओं का ये कॉम्बिनेशन है. और अपने आप को बिल्कुल ऊपर रखा है, विशेषकर लॉन्ग जंप के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. मुबसिना लक्षद्वीप की 2 मिनट्स 26.58 सेकंड्स के साथ पहले स्थान पर रही हैं. हर्षिता गोस्वामी दिल्ली की 2 मिनट्स 28.15 सेकंड्स के साथ दूसरे स्थान पर. जानिस टेसा केरला की 2 मिनट्स 35.70 सेकंड्स के साथ तीसरा स्थान. और मोहर की पोजीशन यहाँ पर देखें 4th पोजीशन पर रही हैं 2 मिनट्स 36.58 सेकंड्स के साथ. तो पहला स्थान जो है यहाँ पर हेप्टाथलॉन का बिल्कुल वो डिसाइड हो चुका है मुबसिना मोहम्मद के रूप में. लेकिन देखना होगा दूसरे और तीसरे स्थान की तरफ, क्योंकि जैंसी जो कि फ़िलहाल तीसरे स्थान पर थी और मोहर मुखर्जी दूसरे स्थान पर थी. यहाँ 800 मीटर में जैंसी जो हैं उन्होंने तीसरा स्थान अर्जित किया है 2 मिनट्स 35.70 सेकंड्स के साथ. सेकंड्स का यदि हम फासला देखें थर्ड और फोर्थ में मात्र 1 सेकंड का फासला है, 2 मिनट्स 35 और 2 मिनट्स 36 सेकंड्स का. अब सवाल ये पैदा होगा, द क्वेश्चन विल बी आफ्टर द 6 इवेंट्स, इफ यू गो बैक टू दैट शीट, you had Janice Regi in the 3rd position. Now Janice Regi has finished in the 3rd year in this event, and Mohar
is gone down to the fourth. Am I right? बिल्कुल. So, has Janice got enough points to get the better of Mohawk, or is Mohawk safe enough to get a silver medal? यदि हम यहाँ पर पॉइंट्स टैली को देखते हैं, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 इवेंट्स 3,971 पॉइंट्स रहे हैं मोहर मुखर्जी के, और जैनिस के जो हैं वो 3,177 पॉइंट्स है. तो फासला यहाँ पर लगभग 250 पॉइंट्स का है. तो थोड़ा सा यहाँ पर स्थिति दिख रही है कि परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही पॉइंट अर्जित करेंगे, और जो टाइमिंग है मात्र 1 सेकंड का फासला है, बहुत आसपास के ही पॉइंट्स उन्हें मिलने जा रहे हैं. अनाउंस होने तक आपका कहना है कि मोहक मुखर्जी को अपने नखून चबाने पड़ेंगे. इंग्लिश में कहते हैं ना, बाइटिंग योर फिंगर नेल्स. बिल्कुल 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 सही कहा आपने. और इधर तैयारी स्प्रिंट मेडले की 1000 मीटर यूथ गर्ल्स का जो फाइनल इवेंट. पार्टिसिपेटिंग टीम्स जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, दिल्ली, महाराष्ट्र, केरला और हरियाणा. So Tamil Nadu, their first leg will be Pooja Shri, R. Abhinaya the second leg, Shweta the third, Aksalin the fourth. They will start at the far end, complete the 100 meters, then the 100 meters runner will complete 200 meters. From there on, it will be 300 meters, and then of course the fourth runner, which is Aksalin, will complete 400 meters. So you need a specialist for each of them, the 100, the 200, 300 and the 400. Karnataka with Apurna, Halima, Geeta and Ritu Shri. Telangana with Chika Shailaja, Mala, Rudla and K. Sindhu. Delhi with Riya, Shrishti, Neri Patak and Asmani. Maharashtra, therefore, runners Kerala with Tara, Sneha, Kasturba, Jyotika, and Haryana with Nikita, Nancy, Mahi, and Nishu. थाउजेंड मीटर स्प्रिंट मेडले यूथ गर्ल्स का जो फाइनल इवेंट, और कुल 7 टीमों में ये मुकाबला. नेशनल रिकॉर्ड नेशनल यूथ टीम के नाम से स्थापित है 2 मिनट्स 10.08 सेकंड्स के साथ, और मीट रिकॉर्ड केरला स्टेट, केरला राज्य के नाम से है 2 मिनट्स 13.57 seconds के साथ. You know, Virendra, I'm just getting off away because the athletes are still not on their block. You know, but when I was talking to Sarthak Nimbalkar, who won the high jump, he's now 17 years old and he doesn't have a passport. He's applied for a passport about a month ago. आजकल तो passport 5-6-7 दिन में आते हैं. कोल्हापुर से ये shifted to Pune. But the point I'm making is that it's so easy to get a passport these days. My advice to the athletes would be, keep your passport ready. कब जरूरत पड़ेगी हम बता नहीं सकते उसको.
So there you are. The stage is all set for the medley relay out here. Karnataka in the men, of course, and the women here in the medley relay, the 100, 200, 300 and the 400. We'll talk about the passport at the end of this event, which is an advice to the youngsters. Keep it ready. कब आपको बुलावा आएगा फॉरेन टूर का to represent India, you never know. And when such an opportunity comes and if you don't grab that opportunity, then you're lost out. जी हाँ, यहाँ जबकि इस 18th एडिशन में नेशनल यूथ की इस चैम्पियनशिप में क्वालिफाई करने जा रहे हैं जितने भी एथलीट जिन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स को अचीव किया है, उनके लिए यहाँ से एक ये संदेश भी और एक इशारा भी, जिस तरह से सार्थक ने अभी इंटरव्यू में कहा कि उसने अभी अप्लाई किया है, आपको यदि आपने यहाँ पर इस क्वालिफाइंग मार्क को अचीव किया है तो हवाई जहाज़ में अपनी सीट पक्की करने के लिए जल्द से जल्द अपने पासपोर्ट रेडी कर लें। इंतज़ार करना होगा एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की सिलेक्शन टीम के द्वारा जो लिस्ट जारी की जाएगी तब तक, लेकिन अपनी तरफ से अपनी तैयारियां आपको पूरी रखनी होगी। And actually, we are today talking of only athletics here, track and field, AFI. मैं तो, I advise every youngster, I advise everyone. Gone are those days when it took you 2, 3, 4 months to get a passport. These days, I said, the system has become so efficient. You don't need to, worry, apply online, and you get a passport very easily. I don't know whether someone from the AFI is listening to us, but my advice is keep your passport ready. Anyway, we're coming back now to the most serious affair, and that's the second last event of the evening, which is the second last event of the evening and second last event of the 18th edition of Youth National Championship at Udupi. The medal winners फिलहाल यहाँ पर लेन A6 जो है वेकेंट नज़र आ रही है। महाराष्ट्र की टीम So starting for Tamil Nadu would be Pooja Shri, for Karnataka Apurva, Telangana Chika Shailaja, Delhi Ria, Kerala in 7, Thara would start for them, and for Haryana it will be Nikita Panwar. The 1000 meters medley relay, 100 meters from the far side. The first of the runners of the 6 who have been entered here will approach the 100 meters, hand over the baton. The second runner will do 200 meters, the third 300 meters, and the final burst or the final run will come from the last runner who will do the 400 meters. बिल्कुल स्टार्ट लिस्ट में यदि हमने यहाँ पर नज़र मारे, टोटल 7 जो हैं टीमों ने अपनी एंट्री इसमें दर्ज कराई थी, परंतु फिलहाल कॉल रूम में जो है महाराष्ट्र डिड नॉट रिपोर्टेड, वहाँ रिपोर्ट नहीं किया है उन्होंने, इसीलिए 6 नंबर लेन जो है वेकेंट है। फिलहाल तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, दिल्ली, केरला और हरियाणा। now To the left of your picture frame is Nikita Panwar of Haryana. In lane 7 is G Thara. As we now get to lane 2 because lane 1 is vacant, Pooja Shri will start. Apurna for Karnataka, Chika Shailaja for Telangana, Ria for Delhi, Thara for Kerala,
and Nikita Panwar 13.5 for seconds Haryana. set by Team Kerala. And the national record, 2 minutes 10.08 seconds set by Matthew Udupi. This is a unique, innovative event. The 1000 meters medley. Each of these states are picking up their best in the 100, the 200, 300 and the 400. लेकिन यहाँ एक बात मैं फिर दोहराना चाहूँगा, इस टॉपिक पर कल अपन ने भी विचार किया था जब इसकी हीट्स आयोजित की जा रही थी। आपकी स्प्रिंट अच्छी होगी, आपकी रेस अच्छी होगी, लेकिन पैटर्न एक्सचेंजिंग जोन पर आप क्या परफॉर्म करते हैं, आपका तालमेल, आपका कॉम्बिनेशन वहाँ पर कैसा है, वह बहुत ज़्यादा निर्भर करता है आपकी परफॉर्मेंस पर। So yes, setting off there, Apurna, Karnataka, Pujashri, Tamil Nadu, Telangana is strong at the baton exchange there. Yes, good. In the inside is 206 and that is Kerala in the lead. Sneha Mariam Wilson there with the second runner. She will do the 200. She's taken the early lead. She'll hand over the baton to Kasturba Prasad on the far end, and from there on this girl, oh well, there's someone slipping in there. Kasturba Prasad being checked in her stride at the far side with 296 is it, which is Dudla Sai Sangeeta of Telangana. So Telangana now take the lead through Dudla Sai Sangeeta. She's built up that lead of about 7 or 8 meters. She'll now hand it over to the final runner, K. Sindhu. Is Sindhu strong, Varinder? That's the question. ये लास्ट लैप है, 400 मीटर कवर करना है और के सिंधु फिलहाल तेलंगाना की, और यहाँ पर जो लीड है उसको कवर करने का प्रयास कर रही हैं। दूसरे नंबर पर केरला की टीम नजर आ रही है। Sindhu very smooth. यहाँ पर देखिए उलटफेर, और तमिलनाडु यहाँ पर अग्रसर हो गया है पहले स्थान की ओर। 265 अक्सलिन जिन्होंने टेक ओवर किया है सिंधु को। सिंधु जो कि तेलंगाना का नेतृत्व कर रही हैं। एक बार फिर यहाँ पर उलटफेर हो रहा है। देखिए कश्मकश पहले और दूसरे स्थान पर, लग रहा है ये अंतिम क्षणों तक जारी रहेगा। बहुत क्लोज नज़दीकी मुकाबला, बिल्कुल कंधे से कंधे से मिलाकर आगे फिनिश करते हुए, लेकिन अंतिम क्षणों में सिंधु जो हैं उन्होंने तेलंगाना की फिनिश किया है। बहुत रोचक मुकाबला। If you get to Virender see such races, your day is made. बिल्कुल, And particularly when सही कहा आपने। it's the end of the day, after it's been a tiring lot for all of us, the runners, and all of us, the organizers, the technical officials, it gladdens your heart when you see such competition, not a one-sided event. ऐसे मुकाबले अगर देखने को मिल जाए, निश्चित रूप से पूरे दिन भर की थकान यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, उतर जाती है। एक बहुत अच्छा रोचक मुकाबला यहाँ पर हमें देखने को मिला, और जो आपस में टसल थी वो थी केवल पहले तेलंगाना और केरला में, परंतु तमिलनाडु की एथलीट अचानक बीच में फ्रेम में आई और अंतिम जो 100 मीटर की दूरी थी उसमें देखिए बिल्कुल शोल्डर टू शोल्डर वो साथ में रही हैं। और टाइमिंग्स यहाँ पर हमारे स्क्रीन के ऊपर, पहले स्थान पर तेलंगाना 2 मिनट्स 18.95 सेकंड्स और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु 2 मिनट्स 19.07 सेकंड्स के साथ, और तीसरे स्थान पर रही है केरला 2 minutes 19.47 seconds के साथ। So Telangana, the combination of Chika Shailaja, who started the 100 meters for them, Mala Shruti, Dudla Sai Sangeeta and K. Sindhu. That combination with Sindhu doing a wonderful job. Of course, she got the help and the assistant. It was a team effort, wonderful baton exchange. And Tamil Nadu with also a super performance, finished second. Puja Shri, Abhinaya, Shweta and Akslin with the Kerala team
who were drawn in lane number 7, Thara, Sneha, Kasturba and Chutika finishing in third. The hallways, on the courts, even in the sky. We are a nation of champions. All of them have one dream that shines and soars their spirit. But what's a dream that has no obstacles? Hurdles that you need to push through and test your determination. And it takes something really special to turn these obstacles into opportunity. The opportunity to take what you deserve. The opportunity to not just wake, but to rise. To race the sun to the finish line of glory. To leave behind the defeats and emerge as the champion you were meant to be. We are honored to be the official banking partner of the Athletics Federation of India. Together, we aim to open up a world of opportunity for our women athletes in their quest to make India proud and get India geared for gold. India loves to play, and play it will. India loves to play in those nooks, in the fields, the hallways, on the courts, even in the sky. We are a nation of champions. All of them have one dream that shines and soars their spirit. But what's a dream that has no obstacles? Hurdles that you need to push through and test your determination. And it takes something really special to turn these obstacles into opportunity. The opportunity to take what you deserve.
the opportunity to not just wake, but to rise, to race the sun to the finish line of glory, to leave behind the defeats and emerge as the champion you were meant to be. We are honored to be the official banking partner of the Athletics Federation of India. Together, we aim to open up a world of opportunity for our women athletes in their quest to make India proud and get India geared for gold. India loves to play, and play it will. Time now for the boys or the men's under 18, the medley relay. 5 minutes 51. Total of 8 teams, all 8 lanes being occupied out here. The medley relay, like any other relay, a combination of 4. Earlier on, we saw a super finish there between Telangana and Tamil Nadu. It was Tamil Nadu, Kerala, and Telangana which were in the fray. As we now get to the introduction of the teams. Lane 1 is Maharashtra, combination of Iklevar, Darak, Ahur Singh and Jason Castellino. In lane 2 is Tamil Nadu team with Nishok, Yuvaraj, Jaron and Sandip. In lane 3 is Lalit Bhatti, Lavi Sharma, Priyansh and Navpreet Singh. Lane 1, Maharashtra. Lane 4 is Tube, Pavan, Patri and Lakshana. This is the lane 3 which is Delhi. Lane 4 they will start off with Tube Gopala Krishna. In lane number 5, Odisha. Odisha will start with Rehan. Lane 6, Karnataka. Lane 6 with Karnataka, Rutik. And lane 8, Haryana in 7 will have Amarjeet to start for them. 1 minute 56. And Telangana in 8 with Raghavendra.
the national record 1 minute. So, as I said, Maharashtra, Iklivar, Darak, Singh and Castellino, Tamil Nadu, Nishok, Yuvraj, Jerome and Sandeep, Delhi, Lalit, Lavi, Priyansh, Navpreet, Andhra, Tube, Pavan, Patri and Lakshmana, Odisha, Riyan, Rajiv, Chinmaya and Bappi, Karnataka, Rutik, Pratik, Yashwant and Dhruva, Haryana, Amarjit to start, Ajay, Vikas, Rahul to complete, and Telangana, Raghavendra, Sangineni, Ramesh and Sheikh. The strongest of the sides, I think, is Telangana once again. They've got Sri Sangineni in leg 2 and they've got Sheikh Azharuddin to finish. But as I said, you never know who has a good bait in exchange, who takes all 4 legs, the 100, the 200, the 300 and the 400. बिल्कुल उम्मीद यही रहेगी कि एक वापस दोबारा इस स्प्रिंट मिडले में हमको रोचक मुकाबला देखने को मिले। तेलंगाना उसमें पहले स्थान पर रही हैं और इस बार फिर यहाँ पर सभी 8 लेन ऑक्युपाइड हैं। 8 टीम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, आंध्र, ओडिशा, कर्नाटका, हरियाणा और तेलंगाना। So, Ifkelwar to start for Maharashtra, Nishok for Tamil Nadu, Bhatti for Delhi, Tube for Andhra Pradesh, Riyan for Odisha, Rutik for Karnataka, Amarjit for Haryana. They now come to the 100, Telangana, Raghavendra. The bait in exchange, well, good one on the outside for Telangana. Telangana takes the early lead, but remember they are now in the lanes. They will have the advantage, of course, of moving in at a later stage. 200 meters here, Telangana takes that lead and a sizable one at that. Will it change from here on? They are strong. Oh, that's a nice little bit in exchange in the inside in lane number 2. Whom do we have? Tamil Nadu strong as well as they come in the inside. Telangana still strong. That difference about 6 odd meters. Andhra Pradesh. But Telangana still in the lead. Still early. 300 meters to go. Haryana equally good. They will now hand it over to the final leg. Excitement building up out here. Who has that resolve to finish the 400 meters in the inside? Telangana is still leading with a comfortable lead, but they have to go for the next 400 meters. The last lap, the last baton exchange has been done, and about 3 to 4 meters lead is there. It is not a sufficient lead, but they have to go hard. And Sheikh Azharuddin of Telangana is moving forward at the last bend and going to the straight. He's got someone on his heels. Virendra, like the women's or the girls race, this is turning out to be a classic again. Oh, look at this. Telangana being pushed. By the Odisha. Has he pipped him? No, not good enough, not strong enough. Telangana started off well and finished off well, but certainly pressure towards the end. But again, we have a very interesting competition here till the finish line, and at the last moment, Odisha's Bappi with bib number 655 has finished at the first place, and Sheikh Azharuddin 74 of Telangana finished at the second place. Look at the replay here. During the start, very good start, but as the Telangana was in the outer track, outer lane, here they go for the exchange of the baton. First 100 मीटर, then 200 मीटर और 200 मीटर के बाद में जो ब्रेक लाइन से आप अंदर आते हो इनर लेन की तरफ, वहाँ से जो आपकी शुरुआत होती है मुकाबले की, वो असली शुरुआत है. I think the experience of Raghavendra, Sangineni and Sheikh Azharuddin with Ramesh chipping in did the trick as far as Telangana is concerned. But as you rightly mentioned, this lead was shortened towards the end by Odisha.
nearly beating a strong Telangana team towards the end. Another more important thing to mention here is if you run only a 400 meter, the flat 400 meter, but if you are participating in a medley relay or a relay, at that time the morale of the competitor and they have a different mentality, their body language also at that time very different from the normal flat 400 meter. Yes, you're doing it for the team. This picture frame gives you an idea of the strong lead that Telangana decided to take from the very beginning. Raghavendra starting off brilliantly for them, and then towards the end, Sheikh Azharuddin just did it for them. But look at this part, the last 100 meters. Odisha with their anchor, Odisha with their anchor Bappi. Ryan, quite the favorite there. Here we have the results on the screen. Telangana is still on the top with the timing of 1 minute 57.46 seconds, and at second it is Odisha 1 minute 57.55 seconds, 46 and 55. The milliseconds difference is there, and at the third place is Delhi with 1 minute 58.42 seconds. The 200 meters sometimes gets overshadowed by the 100 meters because the 100 meters, obviously, as we all know, is the blue ribbon event. But the 200 meters over the years has been dominated, and not over the years, it's always been dominated by the Americans. In between, you had an Italian, Pietro, who got a gold in the 200 meters. So it's an event which keeps on changing hands. But the 200 and the 400, a speciality was made by Michael Johnson and has set the trend. I've got with me Abhay Singh from Bhopal. He actually comes from the wonderful city of Jabalpur, Marble Rocks. It's the home of the Jammu and Kashmir Light Infantry. It's the home of the Signals, the Corps of Signals, and it's also the home of the Grenadiers of the Indian Army. Abhay, 200 meter मीट रिकॉर्ड या ना फर्क नहीं पड़ता है. जीते तैयारी कैसी थी? सर अभी मैं उतनी अपनी बेस्ट तैयारी में नहीं था. मतलब मेरे को थोड़ा और अच्छा दौड़ सकता था मैं. मतलब मैं क्वालिफाइंग उसके लेके आया था, पर मेरी अभी 2 महीने से मैं प्रैक्टिस में नहीं था. अभी 2-3 हफ्ते बस प्रैक्टिस में था. उससे जो हो सकता था मैंने वो ट्राई किया. आपने जबलपुर से भोपाल में शिफ्ट किया है, तो भोपाल में एकेडमी है, कितना फ़ायदा मिलता है वहाँ से? सर डाइट का बहुत फ़ायदा है, जिम का, और बहुत जैसे कि हमें ट्रैक नहीं मिलता है. एथलीट को ऐसे ट्रैक की बहुत ज़रूरत होती है, सिंथेटिक ट्रैक की. हमें अपने होम टाउन में नहीं था, पर भोपाल में हमें एकेडमी हमें ट्रैक देती है, खाने वगैरह का सब डाइट सही रहता है, तो बहुत मदद मिलती है एथलीट को वहाँ पे. टीटीके पे आप प्रैक्टिस करते हैं? जी सर, टीटी नगर स्टेडियम. और आपके कोच साहिबा हमारे साथ में, शिप्रा जी, उनसे भी हम बात करेंगे.
आपका और उनका जो मिलाप है ट्रेनिंग का कैसे चल रहा है? सब बहुत सही है, मतलब मम्मी टाइप ही रखती हैं हमको, मतलब बेटे टाइप रखती हैं हम, बहुत अच्छा है। 400 200 है, थोड़ा 400 के बाद 400 है। मिली सेकेंड्स अगर आपने लूज किया तो सारी आपकी मेहनत वेस्ट हो जाती है। 400 लैप करना है, एंड्योरेंस होता है, थोड़ा सा स्पीड एंड्योरेंस होता है। दोनों को आप कैसे बैलेंस करते हैं? सर ये ट्रेनिंग में प्रोग्राम में थोड़ा चेंज रहता है, जैसे कि स्पीड एंड्योरेंस का एक सेशन हो गया, उसके बाद एक नॉर्मल एंड्योरेंस का सेशन हो गया, तो ऐसे करते करते दोनों को बैलेंस करते हुए चलना पड़ता है। सपना क्या है? सर मेरा सपना ये है कि 1 लैप के कराऊँ, मतलब 400 मीटर का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड रहे, उसी की तैयारी है सर। हीरो कोई है आपका, किसको आप फॉलो करते हैं? सर वैसे हीरो तो मेरा लाइक 200 मीटर का है, नोएल आइल्स, पर तब भी मैं विंडमैन नेकर को बहुत वो फॉलो करता हूँ। और यहाँ पर जो एकेडमी में आप जो ट्रेनिंग करते हैं, इसके साथ आपकी एजुकेशन को भी ध्यान दिया जाता है? जी सर, मतलब स्कूलिंग वूलिंग सब वहीं पे हम लोग करते हैं, पढ़ाई का सब कुछ वहीं करते हैं वो लोग। Well, I've got with me the coach who plays such an important role. Remember, these are young 16, 17-year-old boys, 18-year-old boys. They haven't completed 18, of course. Shipra ji from the academy. शाम को आज सेलिब्रेशंस होंगे यहाँ पर उडुपी में? यस सर, बिल्कुल। आज हमारे लड़के ने बहुत अच्छा काम किया है, उसने जो मेहनत की है उसका फल आज हमें मिला है सर। तो ये तो अब तो सिर्फ क्या कहते हैं, पौधा लगाया गया है, अब तो पौधे को बड़ा करना है। हाँ जी सर, सर पौधा है, अभी भी ये पौधा है और ये उस दिन बड़ा होगा जिस दिन ये हमारे देश के लिए सर ओलंपिक मेडल लाएगा। ये बताओ कि आपके एकेडमी के बारे में कुछ बताइए हमें। सर हमारी एकेडमी, हमारी मंत्री मैम हैं, वो हमारी एकेडमी के मतलब उन्होंने इतना कुछ किया है कि हम उनके बहुत आभारी हैं सर। आज जो भी एकेडमी कुछ कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है सर, सिर्फ हमारी मंत्री मैम की वजह से कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो हमारा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे डायरेक्टर सर हैं सर, मतलब डब्ल्यू की सर, हम लोग उन्हीं का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे सर, जो आज हमारा बच्चा यहाँ पर स्टैंड कर रहा है। गए 4-5 महीने से मैं खुद कमेंट्री कर रहा हूँ AFI के लिए, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए। ये जो अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिल रही है, सीनियर्स को तो मिलती है, बच्चों को मिल रही है, इससे मेरे हिसाब से बहुत ही फ़ायदा होता होगा। बिल्कुल सर, जब बच्चे अपने घरों में रहते हैं तो उतना उनको थोड़ी सर फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जब सरकार अपने ऊपर बच्चों को ले लेती है और उनके लिए सब कुछ करती है सर, तो बच्चों को घरों से अपने आप ही आना पड़ता है और सर उनको फिर लड़ना पड़ता है, लड़ना सिखाती है हमारी सरकार सर बच्चों को कि कैसे जीतना है सर। आप मुझे पता नहीं कि आप निटजैम में पटना में थे कि नहीं थे, लेकिन निटजैम में जो 14 और 16 साल के बच्चों को जो अपॉर्चुनिटी मिली है, 6000 बच्चे थे वहाँ पर, तो ये दर्शाता है कि आज ना सिर्फ नीरज चोपड़ा और अविनाश साबले और हमारे जो लॉन्ग जंपर्स है, ट्रिपल जंपर्स है, वॉकर्स है, आगे और भी पोटेंशियल हमारे देश के बाहर आ जाएगी। बिल्कुल सर, आज हम लोग जो छोटे बच्चों पे काम कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था सर, क्योंकि बड़े बच्चे समझदार होते हैं, लेकिन जो हम छोटे बच्चों के साथ लेके उनको लेके चल रहे हैं, उन्हें आज हमारी ज़रूरत है, और जब हम उनकी ज़रूरतों को समझेंगे तब सर वो तभी तो नीरज चोपड़ा बनेंगे सर। वो मेरे को बताओ, आप कुछ टीचर हैं? नहीं सर, मैं कोच हूँ सर। Well, there she is. I thought she was the teacher for the moment because the way she kept on rattling answers to the questions, it gave me a feeling that she was a teacher. But remember, a coach is a teacher at the end of the day. And this boy, Abhay, the 200 meters winner, I'm sure under the coach, under the teacher, will continue to do well. An event which is now becoming extremely popular. 25 of the athletes started off on the journey, and you know why? The answer is very simple. Someone like Avinash Sable
in the 3000 meters steeplechase has made sure that this nation, the youngsters, take up to the steeplechase. Not an easy event. Remember, the water jump, the hurdles, and the run. So you got a combination of three. Sumitra, you are the winner of the 2000 meters steeplechase. बहुत कम लोग स्टीपल चेस अपनाते हैं, आपने क्यों अपनाया? हमारे कई साथी करते थे स्टीपल चेस। ये बताओ कि आप भी जैसे कविता राउत पहाड़ चढ़ के आती थी, आप भी वैसे करते थे? हाँ सर, कभी कभी करते हैं। ये बताओ कि आप कम बात करते हैं, तो ये शायद होगा कि आप वहाँ पर परफॉर्मेंस ज़्यादा करते हैं और यहाँ कम बात करते हैं। स्टीपल चेस में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको अच्छी लगती है? सर स्टीपल चेज में सर अच्छी चीज़ तो बहुत है, सबसे अच्छी ये टेक्निक सर इसलिए अच्छी लगती है। अविनाश साबले के बारे में कितना जानते हैं, क्या सीखते हैं उनसे? उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, उनको देख के बहुत अच्छा लगता है। ये बताओ कि हाँ, सीखने को बहुत कुछ देखने को कि वीडियो स्टीपल चेज में बहुत अच्छी और सीनियर हैं सब। आज 25 स्टार्टर्स थे यहाँ पर आपके इवेंट में। बीच में मेरे ख्याल से कुछ 600-700 मीटर के बाद में 4-5 बच्चों का कोलिजन हुआ था क्योंकि यहाँ पर लेन्स होते नहीं है बिल्कुल। तो ये संभालना, फिर ऊपर से 3 जो क्षेत्र है उसको आपको संभालना, वाटर जंप, हर्डल और एंड्योरेंस और स्पीड, इसकी कैसे प्रैक्टिस करते हैं? सर वो हमें टेक्निक करते हैं नासिक में, इसलिए इंडोरेंस सब कुछ होता है। ये बताओ कि हमारे साथ कोच है, तो हम यही आशा करते हैं कि अविनाश साबले जैसे आप नाम कमाएं देश के लिए और आगे बढ़कर इंडिया को रिप्रेजेंट करें। अगर आप ऐसे परफॉर्मेंस कर सकते हैं, मीट रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो चाहिए है कि आप में टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट को ना छोड़ना, कोच साहब के संभाल लेना और सबसे ज़्यादा साफ रहना, ये हमारी एडवाइस है। आज AFI रेगुलर सेमिनार्स करती है एंटी डोपिंग के बारे में, ओवर ट्रेनिंग के बारे में। तो मेरे हिसाब से एक साफ़ सुथरा एथलीट रहना, ऐसे कुछ भी चीज़ ना करे कि आपको हानि पहुँचे, आपके कोच को हानि पहुँचे और देश को हानि पहुँचे। ये बताओ कि जैसे मैंने इनको पूछा, कम बात करते, नो प्रॉब्लम, मुझे क्या अच्छा लगता है कि ये वहाँ पर परफॉर्म करते हैं, भले कम बात करें। जैसे ज़्यादा टीवी के ऊपर इनका एक्सपोजर होगा तो बात करनी शुरू करेंगे, जैसे नीरज चोपड़ा आज करता है या अविनाश आज करता है। 5000, 10,000 लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स की एक कितनी इम्पोर्टेंट देते हैं आप? सर स्टीपल चेज में शायद आपको शायद मैं बताऊंगा तो जो कोमल जगदाले जो बच्ची है जिसने इसे वो मेरे पास पे, वो 2018 से मेरे पास में है। और जैसे जैसे जो एक्चुअली मिडिल लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत सारी एबिलिटी तो सेम चाहिए स्टीपल चेज वाली, पर जो एक स्ट्रेंथ स्टीपल चेज में रनिंग में तो आपके पास बेसिक इंडोरेंस होगी तो भी कम चले, पर ये इवेंट लगता तो सेम है, पर इसमें बहुत सारी एबिलिटी है जो स्ट्रेंथ इंडोरेंस है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है, एक्सलेशन एबिलिटी है। तो वो जिस बच्चे में मैं देखता तो मैं उसको ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ स्टीपल चेज में, क्योंकि स्टीपल चेज पॉपुलर तो है पर बहुत जगह हमारे यहाँ फैसिलिटी भी नहीं है। पर अभी नासिक में ये सब फैसिलिटी अवेलेबल हो गई हैं। और जैसे ये बच्चा जब मेरे पास आया, एक्चुअली बताऊँ ये भी हरियाणा से है, ये 2 साल से मेरे साथ में, काफ़ी बड़ा ग्रुप एक हरियाणा का उधर मूव किया है और वहाँ पे सेटल हुए। तो ये बच्चा स्टीपल चेज नहीं करता था, पर मैंने देखा इसका स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, एबिलिटी सब इसमें था और इसीलिए इतनी जल्दी इसने पिछले साल इसने स्टार्ट किया। पहला रेस इसने 6:06 का किया और गुवाहाटी में थोड़ा बीमार था शायद, वहाँ पे 6:08 किया और यहाँ पर इसने सीधा 5:51 किया है। मैंने जैसे इनको पूछा था कि 25 स्टार्टर्स थे, ये दर्शाता है कि आज स्टीपल चेस पॉपुलर हो रही है। हाँ ये सर बिल्कुल पॉपुलर हो रही है। साबले है, उससे पहले भी सुधा है, ललिता बाबर है। हमारी अगर बैकग्राउंड देखेंगे स्टीपल चेज जैवलिन तो उनसे भी ज़्यादा पॉपुलर है, पर सेम मोमेंट में हमारा स्टीपल चेज भी है और मुझको लगता है हमारे पास उसकी एबिलिटी, टैलेंट हमारे पास है। क्योंकि कॉमनवेल्थ में अगर केनिया के बीच में अगर कोई घुसा है तो एक इंडियन घुसा है, तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है और ये शो भी करता है कि हमारे पास इसकी एबिलिटी है। कविता, ये ललिता, सुधा, अभी कोमल जगदाले, सब ये बच्चे हैं जो अच्छा कर रहे हैं। पहले उतनी फैसिलिटी हमारे पास नहीं है, जैसे जैसे अभी फैसिलिटी इंप्रूव हो रही है, मुझे लगता है हम स्टीपल चेज में काफ़ी अच्छा करेंगे। और आखिरी सवाल, AFI ने जो कुछ किया है, करते हैं, ये एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से इन बच्चों को काफ़ी स्ट्रेंथ देगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो सर AFI हम तो
AFI के ही सैनिक हैं। और ये बच्चों को मोटिवेट भी कर रहे हैं। अपने बनोट सर जो है, जिस तरह का प्लानिंग है हमारा, मुझको लगता है एथलेटिक्स में जो हमारी AFI की जो प्लानिंग है, मुझे नहीं लगता किसी फेडरेशन की इतनी प्लानिंग इंडिया में है। और इस कारण हम ओलंपिक में भी मेडल लिया और मुझको लगता है अभी एक आंदोलन स्टार्ट हो गया है मेडल लेने का। Yes, a revolution has shown here, as he says, the Andolan is a revolution, and the revolution in athletics, I'm sure 2024 in Paris, the results will be there, and beyond in 28 and then 32, we'll see all. इसी के साथ 18th नेशनल यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का यहाँ पर समापन और अंतिम 2 इवेंट यहाँ पर जो आज देखने को मिले हैं, स्प्रिंट मिडले, दोनों ही बहुत रोचक इवेंट जिन्होंने कि इस पूरी प्रतियोगिता में 4 चांद लगाए हैं। एथलेटिक ट्रैक एंड फील्ड का यहाँ पर समापन उडुपी कर्नाटक का वह खूबसूरत शहर, और यहाँ से विदा होने जा रहे हैं सारे एथलीट, सारी टीमें और सारे टेक्निकल ऑफिशियल्स। और कमेंटेटर बॉक्स से मैं अपने हमारे वरिष्ठ और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय मिलिंद वागले जी की तरफ से जहाँ एक और आयोजकों को इसकी बधाइयाँ प्रेषित करेंगे, वहीं साथ ही साथ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया को भी हम यहाँ पर सराहेंगे, उनके प्रयासों को, उनकी कोशिशों को और उनके द्वारा दी जा रही सुविधाओं को बिल्कुल यहाँ पर सराहने की आवश्यकता है। और हम आप सभी से विदा लेते हैं अगले कॉम्पिटिशन्स, अगली चैंपियनशिप तक। और इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।